IFTDA की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत है हमारी 11वीं सक्सेसफुल मास्टर क्लास के लिए। दोस्तों, सक्सेसफुल मैंने इसलिए कहा कि लोगों की तादाद इस मास्टर क्लास में बढ़ती गई और एक से एक इंडस्ट्री के धुरंधर डायरेक्टर्स हमारे बीच में आके बैठे, अपनी बातें सुनाई, अपने एक्सपीरियंसेस सुनाए, जो कि अदरवाइज बहुत मुश्किल है क्योंकि हर शख्स इस इंडस्ट्री में बिजी है और ख़ास करके जो सक्सेसफुल डायरेक्टर होता है उसके पास वक्त कम होता है। मैं IFTDA के सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स की तरफ से, IFTDA के सारे मेंबर्स, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और पूरी इंडस्ट्री की तरफ से आप सब लोगों का इस मास्टर क्लास में स्वागत करता हूं। शुरू करते हुए मैं हमारे IFTDA के जो प्रेसिडेंट हैं, जो इस देश के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द फाइनेस्ट टेलीविजन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं, उनके गाइडेंस के अंदर ये IFTDA आगे बढ़ रहा है। मैं बीपी सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आए। सिंह साहब, बीपी सिंह नीड्स नो इंट्रोडक्शन। जितने मर्डर्स, क्राइम आप टेलीविजन पे देखते हैं, सब सिंह साहब ही कराते हैं। आर्ट, CID, all the shows. Thank you, Singh Saab, for coming. I will now request my General Secretary, who is a National Award winner for his film Dhoop, a brilliant director, Ashwini Chaudhary, to come on the stage, please. And now, हमारे आज के मॉडरेटर, जिन्होंने हाल ही में एक नेशनल अवार्ड जीता अपनी फिल्म अलीगढ़ के लिए, उनकी फिल्म शाहिद, सिटी लाइट्स, दिल पे मत ले यार, वुडस्टॉक पिला और अभी फिल्म कंप्लीशन पे है जिसका नाम है सिमरन। आई विल इनवाइट वन ऑफ द फाइनेस्ट यंगेस्ट टैलेंट ऑफ द इंडस्ट्री, हंसल मेहता, ऑन द स्टेज प्लीज। हंसल के बालों के कलर पे मत जाइएगा, बहुत यंग है और बहुत जवान है। एंड द मोमेंट ऑफ द डे टुडे, वी आर ऑल टाइम टू मीट दिस पर्सन, हियर दिस पर्सन, अ मैजिशियन ऑन द स्क्रीन, अ पर्सन हु लिव्स द रियल लाइफ, अ मेकर whom we all salute, a maker who has given to the industry so much, whether it's relationship, cinema, great work of his. I would like you to give a standing ovation to this master director, Mahesh Bhatt sir. Thank you. We just 2 days back lost one of the finest actors of the film industry, a saint, a fakir, and a great personality, Shri Vinod Khanna sir. On behalf of IFTDA, on behalf of the entire industry, we would like to request you to stand for a minute and pay homage to the great master, Vinod Khanna sir. Thank you. Thank you very much. Now I'll request BP Singh Saab to present a trophy on behalf of IFTDA and all our members
to Hansal Mehta, who is a moderator today. Hansal ji, Singh Saab. There's a trophy which we give to all a poster which we design on every masterclass of ours. Singh Saab, please hand over to Hansal. Thank you, Hansal. Thank you for being with us. And now I request Singh Saab to present a wonderful trophy on behalf of IFTDA and all of us to the master today, Bhatt Sahab. What a moment. A poster to Bhatt Sahab, which we specially has designed for today. A very interesting thing we would like to present it to Bhatt Sahab. In fact, he'll be quite surprised and shocked today. When Bhatt Sahab जब member बने IFTDA के, तो जब वो फॉर्म था जो भट्ट साहब ने साइन कराया था, जो फॉर्म भरा था, वो आज भट्ट साहब को प्रेजेंट करने जा रहे हैं. Years back in 70s. Balance of 95 to be paid in installments. That's what I was going to say. Of 25 rupees, 35 rupees, beginning from 1971. But some paid installment of 25 rupees each for 3 months. What a nostalgia for all of us. But Sahab, thank you very much for being with us. And we are presenting him his fresh digital identity card of IFTDA. Oh. Ashwini, please. So we are giving him 2 identity cards. One when he was 21 years old and one what he is today. No, इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि डायरेक्टर था ही नहीं. Thank you. Friends, हाल ही में 2 बहुत कमाल की फिल्में बनी और रिलीज हुई. एक फिल्म थी पूर्णा, जिसे डायरेक्ट की हमारे मित्र राहुल बोस जी ने. IFTDA would like to felicitate this one of the finest directors who has done such a brilliant work in his film पूर्णा. आप सब लोगों ने जरूर देखी होगी. और सब्जेक्ट जो फिल्म का था वो बहुत ही अद्भुत था. और जिस मेहनत और जिस शिद्दत से राहुल ने ये फिल्म बनाई, IFTDA सैल्यूट करता है राहुल बोस को आज और फेलिसिटेट करना चाहता है. तो मैं राहुल बोस से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मंच में आए और भट्ट साहब ये ट्रॉफी राहुल बोस को. पहाड़ों में, सर्दियों में, बर्फ में गिरते पड़ते जिस तरह राहुल ने ये फिल्म बनाई, we are all very proud of you, Rahul, and we really are honored that you are with us and you are one amongst our family. पोस्टर राहुल के लिए स्पेशली बनाया गया है, वो भी भट्ट साहब प्लीज आप प्रेजेंट कर दीजिए. There is a poster which we have done for him. Rahul, you'd like to speak too much, please, people? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ to IFTDA for this honor. Very unexpected, Ashok and Ashwini. Thank you so much, Singh Saab. Thank you so much. Mahesh, thank you for the wonderful words. Hansal, keep up the great work that you are doing. सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप सब जानते हो कि फिल्म अकेले में नहीं बना जाता है. So there's a whole team here. I think Gyani is somewhere here. Where is Gyani? Is he here? Gyanendra, he plays the role of Shekhar Babu in the film, and he's also a very dear friend. So that's Gyanendra Tripathi. तो हम सब ने बनाया साथ में. I mean, everybody knows this. I'm stating the obvious. लेकिन एक चीज़ था कि जब हम बना रहे थे तो हमने फैसला किया था कि जो एक मोटा सा लकीर है मेन स्ट्रीम और आर्ट हाउस सिनेमा के बीच में, कोशिश करेंगे उसके धज्जियाँ हम उड़ा दें. लगता है कि शायद हम कुछ हद तक हम सफल हुए,
when you see Purna, I'm happy to know that you don't know whether it's a mainstream film or an art house film. I never believed in those boundaries, and that's what we were trying to do. Thanks. एक और डायरेक्टर हमारे बीच में हैं जो बहुत ही एक अलग सब्जेक्ट लेके इन्होंने फिल्म बनाई और बाकायदा इतनी इम्प्रेसिव फिल्म बनाई। मुझे लगता है कि क्योंकि भट्ट साहब हमारे साथ आज हैं, फिल्म बनाने का टेक्निक और कम बजट में फिल्म बनाना और हिट फिल्में बनाना अगर कोई जानता है सिर्फ महेश भट्ट साहब जानते हैं और कोई नहीं जानता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मित्र जो काफी एक्टिव है इफ्तिदा में, अविनाश दास से, जिन्होंने फिल्म बनाई अनारकली ऑफ आरा। What a brilliant film, Avinash, you have made. We really salute Avinash for making this film. This is part of IFTDA. We are going to felicitate some directors. And request Bhatt Sahab to please give this trophy to Avinash. A brilliant filmmaker, a brilliant writer, and a brilliant, and a very good human being also. Avinash, a poster which we have designed specially for you. What's up? सांस ले जाना पड़ता है। A poster for Avinash. Really a film which he has made really sends shivers in your spine. Congratulations for a brilliant film, Avinash, and 2 words, please. हम एक कहानी लेकर के आए थे इस शहर में और उस कहानी को सिनेमा तक पहुंचाने में बहुत सारे लोग होते हैं। राहुल ने बताया, मैं राहुल को सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए। तो हमारे साथ उस कहानी को आगे ले जाने वाले, उस पर सबसे पहले विश्वास करने वाले हमारे निर्माता संदीप कपूर हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर आप भी ज्वाइन करें, प्लीज़ आप आइए। हमारी पूरी टीम यहाँ पे है हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, और हमारा सिनेमा है उस पर अब ज़्यादा मैं क्या कहूँ, सिर्फ धन्यवाद और शुक्रिया कहने के। बच्चा to Sandeep, one needs guts to make such film. Sandeep, thank you for being with this kind of a subject and this kind of a film. Really, thank you very much. Take a seat, Rahul. Thanks a lot. Thank you. Masterclass शुरू करने के पहले 3-4 important rules and regulations हैं। हम हर वक्त बोलते हैं लेकिन हमको बोलना पड़ता है क्योंकि हर मास्टर क्लास में नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, नए नए असिस्टेंट डायरेक्टर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं। सवालों का एक सिलसिला होगा। 1 घंटे भट्ट साहब और हंसल मेहता आपस में बातें करेंगे उनके एक्सपीरियंसेस को लेके। उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जो एक आधे घंटे का सेशन होगा, जब आप लोग भट्ट साहब से और हंसल साहब से सवाल पूछेंगे एक्सपीरियंसेस के बारे में। 3 सवाल बिल्कुल अलाउड नहीं है। 1, आपको मिला कैसे जा सकता है। 2, मैंने आपके ऑडिशन दिया था लेकिन आपने ऑडिशन का जवाब नहीं दिया मुझे। 3, आपका ईमेल आईडी और मैंने स्क्रिप्ट भेजी थी लेकिन सिर्फ उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं ये चाहता हूं, हम इफ्तिदा में ये चाहते हैं कि जो मौका हमको मिला है 1-1.5 घंटे का, ये सीखने के लिए मिला है। बहुत मुश्किल से ऐसी शख्सियत हमारे बीच में बैठती है और बातें करती है। ये हमारा पूरा परिवार है, ये हमारा ड्राइंग रूम है। सारे मेकर्स, नेक्स्ट जनरेशन फिल्म मेकर्स, आज के फिल्म मेकर्स, कैमरामैन, राइटर्स, सब इस ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं आज। एक रिस्पेक्ट के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, लेट अस सिट टुगेदर एंड एंजॉय दिस इवनिंग विद वन ऑफ द बिगेस्ट मास्टर, Bhatt sahab. Thank you, Bhatt sahab, for being with us. Over to Hansal and Bhatt sahab. Thank you. Bhatt sahab, I wanted to begin on a very personal note. मैंने कुछ साल पहले भट्ट साहब के लिए फिल्म बनाई थी सिटी लाइट्स। तो वो एक 6 महीने का प्रोसेस था जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था। मतलब मैंने भट्ट साहब के साथ इतने दिन बिताए, इतना वक्त बिताया, एंड आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ मेंटर, अ गुरु,
I learned so much about life, about being fearless, a lot. लेकिन जिस दिन फिल्म रिलीज होगी उसके अगले दिन भट्ट साहब के साथ मैंने लंच किया और फिर भट्ट साहब गायब हो गए. मतलब मैसेज करता था तो रिप्लाई आता था, पर अदरवाइज भट्ट साहब की सडनली एक वैक्यूम बन गया था. तो मैंने कई और डायरेक्टर्स थे जिनको भट्ट साहब ने मेंटोर किया था. तो आई एम स्टार्टिंग, मैं थोड़ा नॉन लीनियर फैशन में जाता हूँ, थोड़ा सा मुझे ऑफ बीट आर्ट हाउस डायरेक्टर मानते हैं, तो थोड़ा नॉन लीनियर जा रहा हूँ. तो भट्ट साहब ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, हाउ दैट जर्नी वॉज सो इंटेंस. इतना कुछ हमने शेयर किया एंड सडनली यू डिसअपीयर. एंड आई आस्क्ड अदर डायरेक्टर्स यू वर्क विद यू, दे सेड कि ये भट्ट साहब का है, वो मतलब उस पीरियड में आपके साथ रहेंगे, वो जर्नी में आपके साथ रहेंगे, फिर भट्ट साहब दूसरी जर्नी में शामिल हो जाएंगे. तो व्हाट इज इट, इज दिस अ पैटर्न, इज दिस? मैं तो वहीं खड़ा हूँ हंसल, तुम कहीं चले गए. कल रात को तुमने मुझे अपने बेटे की एक फिल्म भेजी, मैंने देखी. 17 मिनट की आउटस्टैंडिंग फिल्म थी और मैंने अपनी पूरी शिद्दत से जो रिस्पांस मेरे दिल से निकला मैंने कम्युनिकेट किया. आपकी प्यास पे डिपेंड करता है कि रिस्पांस क्या होगा. शायद आपकी प्यास ही बदल गई और आप दोष कुएं को दे रहे हैं. मगर मैं आज शाम ये बातचीत शुरू करने से पहले वो चेहरे को देखा, उसका नाम है विनोद खन्ना. It's unreal. This is the kind of stuff nightmares are made of. The year was, I think, 73 or 74. I had had 3 back-to-back disasters, Manzil और भी हैं, विश्वास घात, नया दौर. And I was struggling to make ends meet, and I remember making short commercials for Hindustan Levers, Lifebuoy. When I got a call from one of the renowned distributors, a charismatic man called Shankar BC. He was a Sindhi gentleman who had kind of taken over the film business. I remember going to Naz to meet him. He called me into his office. He did not look like a person who had anything remotely to do with the business of filmmaking. He was a distributor. And he said, I want to take you as a director for a film. Then he said, देखो भैया, तुम डायरेक्टर अच्छा है बुरा है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं खुद डायरेक्टर नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम डायरेक्टर अच्छा है कि बुरा है. मगर एक हीरो है. हमारे जो एग्जिबिटर जो हैं वो बोलते हैं फलाने हीरो की पिक्चर लेके आओ तो हम पिक्चर जो है यहाँ रिलीज करेंगे, नाम है विनोद खन्ना उसका. उसने कहा महेश भट्ट को ले लो डायरेक्टर, मैं फिल्म करूंगा. That belief of this gentleman called Vinod Khanna in me at that time when I was in the dumps, barely finding money to make my ends meet and keep the wolf away from the door, gave me the vigor to hold on, plod on. Innumerable times in the life of a filmmaker, you are shadowed by self-doubt. कि क्या मुझे आता है जो मैं क्लेम कर रहा हूँ, एंड अगर आता है तो मेरी फिल्म में कामयाब क्यों नहीं होगी. The evidence screams out and says you're not successful. I mean, you can't look away from the blunt fact that you have got 3 box office disasters. And yet there was somebody there, for some unknown reason, who had seen something of yours, or had perhaps interacted with you when you were a 3rd assistant. I was the 3rd assistant in Mera Gaon Mera Desh, when Vinod Khanna and me rubbed shoulders, and my job was to go and get short video Vinod Saab ko bula lo. There's something that he had seen in him. So I owe this journey of mine to this man. Had it not been for him, I wouldn't be standing here listening to this applause that
I experienced. It was very moving to see such a generous response of all you people. So my gratitude and gratitude, but that was possible because of this guy who just had implicit faith in me, without whom this journey wouldn't have begun. So Bhatt Sahab, tell me, your initial films, Vishwas Ghat, I think that was one Mahesh Bhatt. You'll be more comfortable speaking. So that was one Mahesh Bhatt. And then there was a gap you had, and you came back with Striking, with Saransh, with Arth. And there was a new Mahesh Bhatt. Was there a journey in between? Did something change? Who was that Mahesh Bhatt and who was this Mahesh Bhatt? I must tell you a story again of a great filmmaker called Asit Sen, a man who made Safar, Khamoshi. I encountered him when I was 20, 21. Just after, I think, I reluctantly became a member of the Indian Film Directors Association, because there used to be a vigilance officer that used to move around and stop people from working if they were not members. So I still remember Juhu Hotel was where the parties used to be held, and when you are looking for work, you go to these parties, hoping to rub shoulders with some producer. And my movie Manzile Aur Bhi Hai, which was my first film, had kind of hit the landscape, and not released, but it had been kind of banned for trying to subvert the institution of marriages that used me off. The reputation of the film as it being very sneakily shot and very well shot had made rounds of the film industry. So I went to this party, and there was this gentleman, Mr. Asit Sen, standing immaculately dressed in white at the end of the other room. So somebody told me, let me take you to meet Asit Sen, the great Asit Sen. And I went to meet him, and I greeted him, but he was very disrespectful and very obnoxious in his behavior. I was taken aback because I was a very enthused young man, wanting everybody to praise me for that, for the film should not have seen the light of the day. Just on the basis of the reputation it had kind of whipped up in the industry. So, the moment the gentleman who introduced me went to fix a drink, he said, I'll never forget what he said to me. You think you're a great filmmaker, huh? So I said, sorry? No, they say that you shoot films very well. Trolley shots, and you shoot against rising sun, and you do fast cutting, etc. I said, yes, sir. He said, why do you do all this? Because you want to impress, not touch. You want to dazzle people. And he said something which stayed with me that day. He said, you say all this so brilliantly because you have nothing to say. He said, my boy, the day pain touches you, the day life touches you, you will not do all these stupid things. Get out from here. I was heartbroken. But it's only when I was shattered by life, when I had an extramarital affair and I had a relationship with a star who went mad and broke down and sunk into the abyss. And I was jolted by the brutal truth of life, the fairy tales that were there in me burnt to ashes. And from that ashes something was born. And that gave birth to Earth. And I stumbled on an idiom of mine called the autobiographical idiom. And I said to myself, यार ये 4 फिल्में जो मैंने बनाई वो बाजार के डिक्टाट्स के अनुसार बनाई हैं. चलो मैं वही बात कहता हूँ जो मैंने झेला है, जिया है, जो मैंने समझा है. And Earth flowered. So Earth was something which it was like inhaling life and exhaling cinema. If I had not made Earth, I would have lost my mental balance, assuming I'm still sane. But what Earth had was a raw wound. It had a living wound. It was a bear it all, tell it all. It was like letting the audience
into your own life. And I think that trust that I demonstrated through that film in the people made that film work. And if 34 years later you still talk about that film, it's because not because of the wizardry or the craftsmanship of the filmmaker or his special command over the skill of the cinematic form. There was an urgency and there were certain brutal truths that were sourced from my understanding of life, which were there, which have resonated over the years, in spite of the changing moral values and the way of life of people. So, Saransh, for instance, came from my confrontation with the finality of death and the questions that bogged me down, like where do we come from, what is this all about, and then where are we going? Is there something that endures? Or are we merely fireflies blinking in a dark night, and everything that we do, your work, your thought, your cinema, your children, your civilization, your planet, will all disappear? And the answer comes yes. That's all. Everything that is born dies. And so, how do you continue in your day-to-day life? These were the questions which found answers in Saransh. That it became a very special film because it dealt with the urgency of the pain that had seized the character and how he finds answers. Janam came with my own narrative of hanging it all on the trees, the monsters that were there in my subconscious about my own so-called illegitimacy. And I remember people saying that how could he be so shameless and exhibitionist, how can he reveal what he lives through in his private life onto the screen. I said, you praise the autobiographical authors, why do you have something against them? A filmmaker who does that same thing. And then I remember saying that, what if you have, somebody said to me, why wash your dirty linen in public? I said, there's no special charm in washing it in your backyard. Might as well do it in public. So those were the movies that defined me, and I know those are the movies that Ajay ji, who's here, the critic, will write when I'm dead and gone in my obituary, because it panders to his taste. But there was also a time when I made a film called Naam with the great Salim Khan, because I realized that I joined the world of movies, Hansal, because my mummy said, my father was a filmmaker. His name was Nanabhai Bhatt. He made exotic movies of from the Arabian Nights, Sinbad the Sailor, mythological. But he fell in bad times and he had 2 homes to run. My mother said, you're 15, 16, go and look for some job and bring some money back. So I went to look for some money. Cinema for me was not a tool for self-expression. It was a tool to make a living. As the great Charlie Chaplin said in his final speech when he got the Lifetime Achievement Award, that I did it for the money, people made an art out of it. And after I joined the world of movies, I learned the jargon. I said, this is the space, this is the world I have to live in. So I adapted myself to that kind of a world. But I was essentially a person who was groomed by a house. My father made stunt films with Dara Singh, with Samson. He entertained the farm, the rickshaw pullers, the ordinary men and women of this country, whom you call the lifeblood of this nation. But he never figured in the history of Indian cinema, which celebrated 100 years, because there were tastemakers who said, only if you pander to this taste, we'll consider you worthy of being enshrined in that museum. So the tyranny of taste, I discovered that how those who control the pen, who have the keys of the museum, consider one audiovisual content superior to the other. So I saw no dichotomy between the two. So, since we are talking to a lot of our colleagues, lots of directors here, I always had a question. Hamesha, when I saw Saransh, and when I see it again today, I've always been fascinated by the way. I've always wondered, how did you direct those actors? Even now, we had seen Sanjay Dutt as a very wooden actor before that, and suddenly in Naam, there was something
there was some pain that he was reflecting through his performance and through the film. I mean, Shabana Azmi in Earth, I don't remember after that, something so honest. I think they felt safe, Hansal. I think you also did it as an actor. I mean, I remember Lekha's scene in City Light. So how did she do that scene where she's asked to dance when she goes to the ladies' bar, and it was her first film, a debut. So how did she do it? When an actor feels safe with the director must give the actor a feeling that he is going to protect him or her from any judgment that is there in that space where he is supposed to hang it all on the trees. And I think they instinctively, like children, like animals, feel that the director has insulated them, it created a firewall, and now we are safe. And they can dig into their own wounds and pull out from there what they would shudder to do it, even to themselves, left on their own. Shabana Azmi, you talk about, yes, I remember there was a shot in Earth where she begs her husband not to leave him. She says, I will mend my ways and give me one more chance. And Kulbhushan says no to her. He's got already decided to move away to Smita. After the shot was okay, she broke down and she was inconsolable. And the unit got frightened. I said, leave her alone. She has hit some kind of a memory bubble, which is somewhere in her unconscious. Same thing with Smita. She was living a life which was very turbulent, where she was having a relationship with a married man. She would live that in the night and suffer the pangs of that and come on the set and bear it all. How would you, there's a scene in Earth which has always stayed with me, "Tum itna jo muskura rahi." She's either laughing, crying. I don't. अब हम हिंदी में बात करें. हाँ, जो गाना है, "तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो." जी. और क्या हम में जिसको छुपा रही है, मतलब वो एक एक्सप्रेशन में बहुत कुछ वो कह जाती है. मतलब मुझे याद है, बहुत छोटा था और मैंने इंटरव्यू में, शबाना आज़मी का इंटरव्यू था, मैंने कहा कि महेश भट्ट कमाल के डायरेक्टर है, वो एक्टर्स को क्यूज़ देते हैं कुछ. मैं हमेशा सोचता था कि ऐसे क्या क्यूज़ देते हैं कि मतलब एक्टर इतना अच्छा काम करे. क्या अब मैं ऐसा क्यों बैठा हूँ? फितरत मेरे ख्याल में कहीं पर वो एक एम्पैथी जिसको कहते हैं, जब एक्टर परफॉर्म करता है तो आप उसकी रूह के साथ कहीं पर जुड़ जाते हैं और आप उसके हर एहसास से वाकिफ हो जाते हैं जो उसके उस वक्त उसके अंदर खून की तरह उसकी रगों में दौड़ रहा है. कभी कभी एक्टर भी वाकिफ अपने इज नॉट फैमिलियर विद व्हाट ही इज फीलिंग. ऐसे में आप उससे कहते हैं कि थोड़ी और जुर्रत करो, थोड़ा कुछ और जो है हिम्मत करके अगर वहाँ छूओगे अपने आप को या वहाँ जाओगे तो शायद कुछ ऐसा हाथ आएगा. और वो होता है. तो वो एक रिश्ता कायम करना पड़ता है. इसलिए अक्सर ये होता है जब भी आप एक सिग्निफिकेंट फिल्म बनाते हैं, आपका एक लाइफ लॉन्ग रिश्ता जुड़ जाता है उस व्यक्ति के साथ में. फिर वो रिश्ता सिर्फ एक डायरेक्टर राइटर का नहीं रहता है. वो आप एक दूसरे की रूह से कहीं पर अगर समथिंग कॉल्ड रूह वाकिफ हो जाते हैं और फिर वही है. वो तभी होता है जब आप उसको सुरक्षित महसूस कराएं, उसको ये एहसास दिलाएं कि अब जैसे एक वूम्ब स्पेस होती है जहाँ पर बच्चा जो है जन्म लेता है, वो एक ऐसी स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है डायरेक्टर को. वो अनकॉन्शियसली डायरेक्टर करता है. उसके लिए कोई किताबें पढ़ के वो नहीं हो सकता. जैसे संजय दत्त और कुमार गौरव के नाम में, एंड उसमें उन दोनों ने कभी हमने देखा नहीं था उनको परफॉर्म करते हुए. तो कि शबाना आज़मी को डायरेक्ट करना एक अलग बॉल गेम है. एंड डायरेक्टिंग, लेकिन यही है कि हमको लगता है कि क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन से निकले हैं तो
और या आपके पास एक तहजीब थिएटर की आपकी अंदर आपके अंदर ढेली गई है, तो फिर आप ही एक ऐसे शख्स हैं जिसके who has the right to scale those dizzying heights of being called a great actor. संजय दत्त जो हैं आज भी तो जेल से निकलने के बाद वो आए थे मुझे मिलने, उन्होंने कहा कि मैं कुछ 2 साल जब जेल में रहा तो बहुत कुछ मैं अंदर जो है मंथन चलता रहता है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को मैंने दोबारा जिया। और बार बार वो कहता था कि वो जो एक शॉट आप मेरा नाम में ले रहे थे, जहाँ पर मैं बाहर बैठा हूँ कुमार गौरव के साथ में, और जलेबी खा रहा हूँ, एक सीन था, बहुत अच्छा सीन। आप बार बार वो शॉट को कट करते थे। कुछ आप जैसे डायरेक्टर जो बहुत ही इकोनॉमिकली फिल्म बनाता है, आपने कुछ 20-25 टेक उस शॉट के लिए, तो मैंने परेशान होकर कहा कि व्हाट डू यू वांट? तो मैंने कहा कि ये जो तुम पे थोपा गया है नाम से पहले, उसको जब तक तुम निकाल के फेंकोगे नहीं, और जिस तरह तुम कैमरा से के सामने आने से पहले बिहेव करते हो वैसे ही कैमरा के सामने बिहेव नहीं करोगे, तो मैं शॉट को ओके नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे वो शख्स चाहिए जो कैमरा ऑन होने से पहले मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत वल्नरेबल लगता है, अपना सा लगता है। तो हिम्मत करके तुम वैसे ही अपने आप को पेश करो। इसे वो कहना आपका और मेरा वो मान लेना और करना, वहीं पर जो है मेरी कहीं पर एक जर्नी शुरू हुई। तो कुछ आई थिंक आई गेव हिम द गिफ्ट ऑफ हिमसेल्फ बैक। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने वो यू आर योरसेल्फ, आपको अपना स्वभाव जो है उसको गले लगाने के लिए कुछ ज्यादा कोशिश थोड़ी करनी पड़ती। कोशिश तो करनी पड़ती है, ट्राई टू एक्ट लाइक फेडरिको फेलिनी or I try to act like one of the renowned names in the international cinema, then I will look, effort करके आना पड़ेगा, but I don't have to make an effort to be myself. This is what I am. वो एक्टर को जब आप फिजिकल कंफर्ट दे दें, फिर वो किरदार तो आपकी स्क्रिप्ट में होता है, आपने फिक्शनल नाम दिया है उसको, उसकी एक जर्नी होती, तो उसके फ्रेम में वो कुछ अपना सच्चा, अपने वजूद का कुछ सच्चा रंग जो है उसमें वो ढेलता है। So, another striking thing about your film, जो हमेशा मैंने भी एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, कि फिल्म जिसमें बिल्कुल गाने नहीं थे, आपने मुझे 6 गाने दे दिए, तो लेकिन हमेशा मतलब आपकी फिल्मों में म्यूज़िक का अगर अर्थ इफ अर्थ ब्रोक दैट बैरियर ऑफ बीइंग नॉट रियली अ नीश काइंड ऑफ फिल्म, pandering to both, its songs are immortal. What, how do you, I have experienced it. मैं चाहता हूँ कि अपने कोलीग्स को बताऊँ कि गाने उनमें जो लिरिक्स है वो कहाँ से आते हैं। ये कहते हैं कि what you teach your children, you teach your grandchildren. ये बात मैंने अपने गुरु राजपूतला साहब से सीखी। राजपूतला साहब ने मुझसे कहा था कि देखो यार, तुम लोग बड़े मॉडर्न फिल्म मेकर्स बनने नाटक करते हो, सुनो, देखो इंटरनेशनल सिनेमा फेस्टिवल जाते थे, हम आके उसका जिक्र करते थे, मगर हिंदुस्तानी सिनेमा के इडियम में एक म्यूजिक का अहम रोल रहा है। वो हमारे जो सो कॉल्ड रियलिस्टिक सिनेमा के जो स्पेस से निकले थे, बिमलदा, ऋषिदा, वो भी उस बात से वाकिफ थे कि म्यूजिक का होना फिल्म में 4 चांद लगा देता है। तो मैं तुमसे इंतजार करता हूँ मेरे भाई कि फिल्म वही बना, उसका मयार बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ कम करो या तुम उसको बिल्कुल एक लाउड मेलोड्रामेटिक नैरेटिव बना दो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम उसमें हर की मोमेंट को कोशिश करो कि तुम म्यूजिक से उसको तुम मैं बांध दो, और जो आपकी कहानी का जो सबटेक्स्ट है उसका इजहार अगर आप करना चाहें तो म्यूजिक से, उसकी लिरिक्स से करें। आप देखिए फर्क क्या पड़ता है। और एग्जैक्टली वही हुआ अर्थ कि अर्थ का हर जो की मोमेंट है, जो ड्रामेटिक कर्व है, जो नैरेटिव की जो लीप्स हैं, वो कहीं पर एक गाने के साथ में जुड़ा हुआ है और उसके लिए ब्रिलियंट
राइटर जैसे कैफी साहब जैसा लिखते थे, जिस सादगी से वो लिखते थे, मुझे लगता नहीं है कि अर्थ उस ऊंचाइयों तक पहुँच पाती अगर कैफी साहब नहीं होते और जगजीत जैसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं होता जो उनकी सादगी को समझ कर उनकी सरल अंदाज से उसको कंपोज करता है। ये बात मुझे समझ आ गई। जैसे आपकी फिल्म सैटेलाइट, उसका जो मुस्कुराने की वजह, तो वो गाना इतना बड़ा हिट हुआ, हालांकि वो उस फिल्म के टेक्सचर से उसका कोई लेन देन था ही नहीं, मगर क्योंकि वो गाना आ जाता था तो लगता था कि हाँ ये कहीं पर ये दो व्यक्तियों की कहानी है, ये एक लव स्टोरी है। और फिर वो पूरी दास्तान जो है लोग ऐसे देखते थे कि ये लव स्टोरी में कहीं दरार आ गई है, और उस वो पर्सपेक्टिव ने फिल्म को बहुत फायदा पहुंचाया। तो भट्ट साहब, आई वांट टू टॉक अबाउट योर क्राफ्ट बेसिकली, कि आपने जब बहुत सारी फिल्में बनाई, देयर वाज डेफिनेटली सम क्राफ्ट, मतलब यू नो लॉट ऑफ अस, हम लोग हमेशा कहते हैं कि क्राफ्ट कुछ नहीं होता है, कहानी कहो, लेकिन आपका यू नो अगेन आई वांट टू, बिकॉज इट्स अ मास्टर क्लास, आई वांट टू आस्क यू कि व्हाट वाज योर रिलेशनशिप बिटवीन विद द कैमरा एंड द एक्टर, व्हाट वाज what would you tell your director of photography? मैं बड़ा रिलक्टेंट था इस मास्टर क्लास में आने के लिए, क्योंकि मैं उस पोजीशन पर बैठना ही नहीं चाहता जहाँ पर लोग आपको मास्टर समझें। नॉट बिकॉज ऑफ द बोगस ह्यूमिलिटी, हाँ मैंने जहाँ से शुरू किया वहाँ से मैं बहुत आगे पहुँच गया, मगर कहीं पर बच्चों को ये आप कम्युनिकेट करते हैं नॉट वांटिंग टू, डिस्पाइट ऑफ नॉट वांटिंग टू, कि जो आप कह रहे हैं वो ये नज़रिया है। जो मैंने अनुभव किया, बहुत कुछ किया अपनी ज़िंदगी से हासिल किया, मगर वो इट्स अ वेरी लिमिटेड वर्ल्ड। कुछ ऐसा एक नौजवान वहाँ पर बैठा हुआ है या एक बच्ची बैठी हुई है जो इस उम्र में भी उसके पास एक पर्सपेक्टिव है जो मुझे बिल्कुल झंझोड़ सकती है, मुझे कुछ मेरी सोच को तहस नहस कर सकती है। तो मैं मास्टर क्लास के ये नाम से थोड़ा सा परहेज कर रहा था, बट ये मौका था कि हमें अपनों से मिलूं, और जैसे ड्राइंग रूम में आप अपनी ज़िंदगी का अनुभव शेयर करते हैं, उससे जो आपको मिल जाए वो आपका, इसलिए तो आप लेट मी क्वालिफाई व्हाट एवर आई एम सेइंग वाज ट्रू टू माय लाइफ। एब्सोल्युटली देयर इज नो कंपास, देयर इज नो मैप। जो कहता है, जो सिलेबस लिखता है, ये डू इट दिस वे, डू इट दैट वे, ये आपको एक जार्गन दे सकती है, मगर इट्स लाइक कि आप पृथ्वी को देख लीजिए, इज दैट समथिंग कॉल्ड द इक्वेटर, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड, इसका मतलब क्या है? इट डजंट मीन अ डैम थिंग, बट हम क्योंकि अपने आप को समझाते हैं थ्रू अ जार्गन, तो यू मेक द जार्गन मोर इंपॉर्टेंट देन द रियल थिंग। हाँ, एक स्टोरी टेलिंग की एक स्किल होती है जहां पर एक वक्त लग जाता है समझने के लिए, सब 3 एक्ट स्ट्रक्चर, या अब टेलीविजन के एज में 6 एक्ट स्ट्रक्चर। तो ये बात है, आपको गिर पड़ती है, जैसे माओ से तुम कहते थे कि यू लर्न स्विमिंग बाय स्विमिंग, उसी तरह गिरते पड़ते हुए 4 फ्लॉप्स बनाने के बाद में 3 फ्लॉप, 4 तो चौथी तीसरा नजर कहीं पर कुछ समझ में आया। तो यू लर्न फिल्म मेकिंग बाय फिल्म, बट यू ओनली लर्न टू मेक दैट फिल्म, यू ओनली लर्न टू राइट दैट फिल्म। क्योंकि आपने नदी को एक मरतबा क्रॉस कर लिया, इसका मतलब नहीं कि दूसरे मरतबा आप क्रॉस करेंगे तो आप डूबेंगे नहीं। इट्स अ डिफरेंट रिवर एंड इट्स अ डिफरेंट व्यू। इसलिए आप एक फिल्म बनाते कमाल की हो जाती है, फिर वही फिल्म मेकर जाता है इतनी मीडियोकर फिल्म बनाता है। You are capable of saying something very brilliant and something very, very mundane and very idiotic, and my career screams out and says that. But there is some kind of a craft. हाँ, वो आपका एक अंदाज बयां होता है, जैसे आपका एक लहजा होता है, वो कहीं पर माँ की आवाज़, अपने माहौल की का एक स्पेस जो है कि शिवाजी पार्क में पले हैं, क्रिश्चियन स्कूल में गए हैं, माँ मुसलमान, बाप हिंदू, क्रिश्चियन स्कूल, तो वो सारा वो जो एक संवाद, वो सारा जो कल्चरल जो एक रेसिड्यू आपके अंदर है, तो उससे कहीं पर आपने कोई अमेरिकन फिल्म देखी है, हिंदी सिनेमा देखा है, उसका एक मिश्रण है जो आपके
आर्ट फॉर्म जिसको आप कहते हैं उसके जरिए आप उसको करते हैं, मगर कॉन्शियसली ऐसा कोई कंस्ट्रक्ट था नहीं मेरा जिसको मैंने फॉलो किया। जब मैंने उसको समझ के समझाने की कोशिश की तो आई फेल ग्राउंड जीरो। जब भी किसी फिल्म बनाते वक्त ये नहीं लगा कि शायद ये चल सकता है कि नहीं चल सकता है, कहीं पर एक फीलिंग थी कि शायद ये रिस्क है, रिस्की है, तभी सिग्निफिकेंट फिल्म बनी। जब भी लगा ये तो बिल्कुल सही फिल्म है, ये तो सारे जो पैरामीटर्स हैं बॉक्स ऑफिस के या जो एक आर्टिस्टिक एक प्रोडक्ट के हैं इसको फुलफिल करती है, इट डिड नॉट टच एनीबॉडी। सो आई वुड से कि जो आप समझते हैं, हाँ देयर वाज एन अर्जेंसी। ग्रेट फिल्म राइटर प्ले राइटर विजय तेंदुलकर साहब मुझसे कहते थे यार तुम्हारी फिल्मों में एक अर्जेंसी है, अर्थ में एक अर्जेंसी है, सारांश में एक अर्जेंसी, एक नैरेटिव में एक इनबिल्ट अर्जेंसी होती है। वो एक जैसे कुछ चुप गया है आपके कलेजे में, सीने पर, दिल में, unless you take it out you will not be able to get respite. That quality comes from films which are autobiographical in nature, कहीं पर आपने जिया है, झेला है, और कहीं पर फिल्म मेकिंग के दौरान आप खुद समझना चाहते हैं। इसे फिल्म फोकनर कहते थे, I only understand what I was thinking when I read what I have written. अच्छा ये था। और अच्छा काम तो वो होता है जब आप देखते हैं लगता है ये मैंने बनाया है। उससे कैसे हो गया? अच्छा काम जो होता है वो दुनिया का होता है। It belongs to everybody else. It doesn't belong to you. And you are just fortunate. And this is not bogus humility, it's an honest confession that you do not know how you did it. And to reduce it to a few sentences in a master class is to create a syllabus which will only mislead people. It will become an albatross. Then you will take a lifetime to unlearn it. कि हमने बहुत सारा पढ़ा था, बहुत पढ़ के हमने जिंदगी के मैदान में हमने प्रवेश किया था, फिर वो अनलर्न करना पड़ता है। Bhatt sahab, you have been greatly influenced by U.G. Krishnamurti, and you have always spoken about him. So how has he influenced you as a your filmmaking career and UGK sort of went almost parallel to each other? So your spirituality, where did it, sort of... There was nothing spiritual about that man. In fact, he said, I would rather be called a fraud than a god man. In fact, जब मैं विनोद के साथ में मैं रजनीश आश्रम गया था, तो तब मैं एक हारा हुआ फिल्म मेकर, हैविंग टेस्टेड डिफीट, कहीं पर अपने ईगो को सुकून पहुंचाने के लिए मैंने कहा कि चलो ये गाड़ी वहाँ मोड़ते हैं, कुछ स्पिरिचुअल सुपर बाजार में जाते हैं और कहते हैं कि अब हमको ये चांदी के टुकड़े चाहिए नहीं, हमको तो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट चाहिए। तो वहाँ पर जब हम गए थे, एक्चुअली इस जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से कहीं पर हार के गए थे। तो वहाँ पर 2-2.5 साल हमने कुछ ध्यान किया, पुस्तकें पढ़ी, मगर अंदर कुछ बदला नहीं। ऐसे में मेरी मुलाकात यूजी कृष्णमूर्ति साहब से हुई। जिंदगी में कभी आपको एक शख्स मिलता है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है, और फिर सारी उम्र उसकी महक जाती नहीं है आपकी रूप से, उसका रंग जो है आपके रंग से जुड़ जाता है। वो एक दिल क्यों किस पे इतना एतबार करता है, क्यों आपको किसी से इतना प्यार हो जाता है, ये रहस्य को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ लफ्ज बटोरोगे, कुछ जवाब मिलेंगे नहीं। तो वो सिर्फ एक रिश्ता मेरा उनके साथ में रहा, और बट ही वॉज एन आइकोनोक्लास्टिक पर्सन। मगर वो कहते थे कि जिंदगी की ये रियलिटी है, इस दायरे में आपको ये सारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, रूल्स हैं, उसके दायरे में रह के आपको कामयाबी हासिल करनी है। मगर एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट एक जो ट्रेट था हमारे फितरत में था, बचपन से था, कि माँ बचपन से कहती थी बात तो बाकियों की तरह क्यों नहीं है, बाकियों की तरह क्यों नहीं है। वो बाकियों की तरह नहीं होना जो था वो लोगों का करता था, घर वालों का करता था। जिंदगी में एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि जरूरत नहीं बाकियों की तरह बनने, ये जो तुम हो वही तो है। और उन्होंने एक मिसाल दी थी कि नो टू लीव्स आर द सेम। एक पेड़ पे 2 पत्ते होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। नो टू स्नोफ्लेक्स आर द सेम। नेवर वाज अ पर्सन लाइक यू।
in the universe. Never will there be a person like you. You are unrepeatable. So if you don't claim yourself, who else will? You can lie to तुम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से थोड़ी झूठ बोल सकते हो। जब वो बात कहीं पर समझ आ गई तो लगा ये कहीं मेरा ही कोई अपना है, मैं ही हूं, तो किसी दूसरे शरीर से बोल रहा है। एक रिश्ता वहां से हो गया, मगर हाँ एक ऐसी क्रांति घटी उसके बाद में कि फिर जिंदगी को अगर हम डिफाइन करें तो इट्स प्री यूजी कृष्णमूर्ति फेज एंड द पोस्ट यूजी कृष्णमूर्ति फेज। मगर अगर मैं कहूं कि अगर लोग कहते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट क्रिएटिव थिंग यू हैव डन, तो मैं कहूंगा मेरा सारा सिनेमा एक तरफ और मेरी एक पुस्तक है टेस्ट ऑफ लाइफ, जो मैंने उनके लास्ट डेज में लिखी थी, व्हेन टाइम एंड आई वाज इन इटली। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द मोस्ट ब्रिलियंट quote unquote creative work of mine, क्योंकि वहां पर जैसे आदमी अपने खून को शाही में बदल देता है, अपने खून के रंग से कुछ लिखता है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। सो हिज contribution to my life is like what is the contribution of my breath to my life? जिस तरह मैं सांस लेता हूँ, he is my breath. Another thing, Bhatt sir, so spirituality, so we'll move on to another of our favorite topics, and this is something that we've always lamented, कि as a filmmaker, you have strong political opinions, and we yet many of us have strong political opinions, but हमारी films बड़ी apolitical होती है. We try to stay away from, the unpopular or the non-conformist politics that you might have. So, how important do you think it is to first have a political stand and to reflect that through your characters, through your films? देखिए, हर व्यक्ति जो अपने आप को राइटर मानता है या थिंकर मानता है या सेंसिटिव कहता है कि मैं सेंसिटिव हूँ, तो वो अपने पॉलिटिकल रियलिटी से डिस्कनेक्टेड हो ही नहीं सकता, बिकॉज that you call about what you define yourself is shaped by everybody else. You all shaping me. ये conversation possible इसलिए क्योंकि आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। मगर हम फिल्म मेकर जो हैं, we are in the business of entertainment, right? तो business of entertainment का एक fundamental जो उसूल है कि mass media है, it seeks mass acceptance, कि सबसे ज़्यादा लोग उसको पसंद करें। एक 1.2 बिलियन की आबादी में बहुत सारे लोग हैं जिसकी उनकी अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तो आप चाहेंगे कि वो ही आपकी फिल्म आके देखें और उससे उसको पसंद करें, तो क्योंकि आपका वो एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये दिस इज द एग्रीड रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टर, कि संदीप जी अगर पैसा लगाते हैं फिल्म में तो ये मान कर लगाते हैं कि आप जितना पैसा दिए कम से कम उतना तो आप उनको लौटा देंगे, हो सके उसका सूद दे दे तो कमाल हो जाए। He is not giving it to you so that you can get the accolades and get the national award, and he signs gundis and sells his home. ये बहुत unspoken reality है। हमारी कमिटमेंट होती है towards that producer कि आप पैसा दे दीजिए, मैं फिल्म बना के आपके पैसा लौटाऊंगा। हम उस दुनिया से आए हैं, इसलिए अगर आप कहते हैं कि जैसे अशोक जी ने कहा कि साहब कम बजट में सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्में हमने इसलिए बनाई क्योंकि हम अगर बॉक्स ऑफिस की फिगर्स नहीं देखते थे तो हमको पैसा नहीं मिलता अगली फिल्म का, और अगर किसी फिल्म में नुकसान होता था तो फाइनेंशियल दूसरे मरतबे जाते थे तो कहता था फलाने में आपने इतना नुकसान किया तो ये तो हम काट के देंगे आपको। तो देयर वाज नो फ्री लंच। फिर पूरे कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद में वो व्यक्ति खत्म हो गया जो आपको सवाल पूछता था ऐसे थे। आई फील दैट सिंस यू सीक मास एक्सेप्टेंस, तो फिल्म मेकर्स परहेज करते थे to take a very sharply positioned political narrative. मरहूम यश चोपड़ा साहब ने मुझसे कहा, उनकी पहली फिल्म थी, मेरी फिल्म जख्म देखी उन्होंने, और उन्होंने फ़ोन करके बहुत तारीफ की थी। मैं स्टीवन स्पीलबर्ग की एक फिल्म देख रहा था, बड़ी जलील फिल्म थी, उन्होंने फ़ोन किया था, मैंने तुम्हारी फिल्म देखी जख्म, बहुत पसंद आई मुझे। समझ में आया क्यों नहीं चले कि किसी से बात करेंगे। तो फिर मैं उनसे मिला तो उन्होंने बात की मुझसे, कहा कि देखो मैंने फूल का फूल के बाद में फिल्म बनाई थी,
धर्मपुत्र धर्मपुत्र था। और यश चोपड़ा साहब पार्टीशन के विक्टिम थे, मगर उनकी सोच फिर भी वो इतनी एक अपनी प्लूरल स्पेस से जुड़ी हुई थी। मगर फिल्म जो है उसने बहुत ही कंट्रोवर्सी जनरेट की और इट वाज अ डिजास्टर। मुझे बात समझ में आ गई कि इस माध्यम से आप अपनी जो पर्सनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कनेक्टेड कोई फिल्म हो उसको आपको बनाना नहीं चाहिए। इश्यू जिस फिल्म पे लिखा होता है वो फिल्म को हमको बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो लोग जो है दूर रहते हैं उससे। ये एक रियलिटी है जो बाजार के जो लोग हैं उससे वाकिफ है। दैट हैज बीन गवर्निंग द माइंडसेट ऑफ द मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा। मगर वक्त के साथ में जुर्रत करके बहुत सारे फिल्म मेकर्स आए हैं, जैसे मेरी फिल्म वो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिल्कुल कनेक्टेड है। इट इज कमिटेड टू द प्लूरल व्यू ऑफ दिस कंट्री, द डाइवर्सिटी दैट वी सेलिब्रेट। आई मीन दैट्स द लाइफब्लड ऑफ इंडिया। और वो उसने हमको नेशनल अवार्ड दिया, और दैट वाज गिवन एट अ टाइम व्हेन द एनडीए वाज इन पावर। इट वाज a film which was given the best picture for national integration, and अजय देवगन का अवार्ड मिला। तो आई फील कि हमारे मुल्क की तहजीब जो है हमको इतनी बैंडविड्थ देती है कि आप आइडियोलॉजिकली जो रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी से आप अलग हो से के फिल्म बनाएं, मगर यू कैन मेक इट प्रोवाइडेड योर कन्विक्शन इज देयर। हमने किया, हमने कामयाबी लिमिटेड हासिल की बॉक्स ऑफिस पे, मगर क्रिटिकल कामयाबी हासिल की। मगर जो प्रोड्यूसर होता है, क्योंकि उसका काम पैसा लाना होता है, इस माहौल में जहाँ पर व्यूज इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, आर वेरी पोलराइज्ड, देयर इज अ काइंड ऑफ रिलक्टेंस, अ टिमिडिटी टू बैक अ राइटर्स पर्सनल कन्विक्शन। आपकी पर्सनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसको अगर आपको एक्सप्रेस करना, पुस्तक लिखिए। मुझे किसी ने कहा था भैया कि बहुत अच्छी सोच है आपकी, किताब लिखिए, कविता कहिए। ये जो बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट है इसमें इतना पैसा लगता है, और आजकल जो मार्केटिंग के लिए डबल लग जाता है, उसको लेकर एक वल्नरेबल ऑडियो विजुअल कंटेंट लेके बाजार में उतरना, व्हिच बिकम्स वल्नरेबल टू द सेंसिबिलिटीज ऑफ द पीपल इन द टाइम, इज डेंजरस। सो दैट इज व्हाई आई फील दैट द विजडम हैज बीन कि in the business of entertainment, step away from contentious issue, because your intention is to reach maximum people. जैसे आपने माइक्रोफोन क्यों लगाया है, ऐसे लगाए, इंटेंशन है कि वो जो वहां बैठा है उस तक आवाज पहुंच जाए। क्या हम उसको शामिल नहीं करना चाहते संवाद? हाँ, करना चाहते, इसलिए लगाया। तो आपका जो मीडियम वो ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम पीपल लोगों को जोड़े, और उसके दायरे में रहते हुए आप वो कोई बात कहें जो आपको लगता है कि आपको एंगेज कर रही है, उसको एंगेज कर पाए। दिस इज द विजडम, बट यू आर फ्री टू डिमोलिश इट एंड टेक अ पोजीशन एंड मेक अ कंप्लीटली पॉलिटिकल फिल्म एंड फेस द म्यूजिक। पीपल हैव डन दैट, पीपल हैव डन दैट एंड फेस द म्यूजिक। So what made you stop directing? You know, you're such a passionate person. आपने जख्म के बाद कि what was the signal? I always wonder why would somebody who is directing, you know, who is blessed to be in this profession, why would he just let it go? Why would he just leave? I was intelligent enough to know that हर फिल्म मेकर एक फूल की तरह होता है, ब्लूम करता है, अपनी खुशबू बिखेरता है, और वक्त के साथ में उसको मुरझाता है और मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में मिलकर खराब नहीं होता है, वो मिट्टी में मिलकर वो ऊर्जा देता है दूसरे पौधों को। जैसे आपने खुद कहा शुरू में कि 6 महीने में आपके साथ ऐसा जुड़ा रहा जैसे आपको इंस्पायर करता रहा। आई डिड जॉब मेंटर। अगर मैं डायरेक्टर होता तो आपको काम करने नहीं देता, क्योंकि मैं डायरेक्टर नहीं हूं। मैंने हर इश्यू पे कहा कि हंसल डिसाइड करेगा, करेक्ट? क्यों? क्योंकि मैं सम्मान करता हूं। आई नो व्हाट इट शुड बी अ डायरेक्टर। मेरे पास इतनी नॉलेज है, मगर दैट नॉलेज इज देयर इन माय इडियट बॉक्स टू बी चैलेंज्ड एंड यूज्ड अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द डायरेक्टर। मेरे अंदर वो प्यास कहीं पर कुछ नहीं। आई बिकेम एक पिकासो की बहुत कमाल का किस्सा है कि पिकासो की एक कमाल की पेंटिंग थी, उसकी एक फेक पेंटिंग थी, तो एक गैलरी में थी
और उसी गैलरी में पिकासो साहब पहुंच गए, तो उसके जो गैलरी के जो ओनर पिकासो साहब, कमाल हो गया साहब पिकासो साहब, अब आप बताइए कि कौन सी रियल पिकासो पेंटिंग है, कौन सी फेक है, दोनों एग्जैक्टली एक जैसी है। तो उन्होंने कहा दोनों फेक है। बोले वो कैसे हो सकता है, एक रियल है। बोलते नहीं, इवन अ पिकासो कैन मेक अ फेक पिकासो। तो महेश भट्ट लेबल तो था, बट महेश भट्ट वाज अ फेक महेश भट्ट। वो जाता था, अपना लेबल बेचता था, मगर वो ईमानदारी जो थी कहीं पर वो समाप्त हो गई थी। वो जज्बा, वो पैशन जिसकी वजह से लोग आते थे, जिसकी वजह से वो जुड़े थे मेरे ब्रांड से, वो कहीं पर आहिस्ता आहिस्ता कहे कि भैया ये नाम है मगर वो तो है नहीं। और वो शिकायत सही थी, हमने बड़ी कोशिश की वो देख के अनदेखा करने की, बड़ा वक्त लगा। कहीं सिटी लाइट बनने के बाद में, थोड़ा बेगम जान के बाद में, कि वो कहीं पर वो सोच को बाहर जिंदा कर रहे हैं। मगर आई फेल्ट दैट आई, एज आई सेड टू यू, कि व्हाई डू यू डू थिंग्स फॉर फाइनेंशियल ग्रेटिफिकेशन? पैसा चाहिए होता है, कितना पैसा कमा लोगे, क्या पहन लोगे, क्या खा लोगे, एक सीमा होती है हर एक। वो हमने कर लिया था। और इस ईडियम में, एक बॉलीवुड का जो ईडियम है, जिसका जो मेरे ख्याल था उसकी एक गिवन उसके दायरे हैं। अभी यूजी कृष्णमूर्ति की जो सबवर्सिव सोच, जो मैंने टेस्ट ऑफ लाइफ में जो ढेली है, जो आप मेरे रूह से निकली है, उसको लेके तो मैं कहीं पर फिल्म नहीं बना सकता, वो बनी नहीं सकती फिर, क्योंकि वो हर आइडियोलॉजी, हर जो है एग्जॉल्टेड पावर सेंटर को वो अटैक करती है। तो ये सोच जो मेरे अंदर है, वो जो मेरे रूह में जो हर वक्त जो है, जिससे मैं इशू से जुड़ता रहता हूँ, उसको मेन स्ट्रीम सिनेमा में पेश करना वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। I was a realist to understand that it's not possible. And the desire to make films had withered in me. And I was not interested in faking. मैं डायरेक्शन की एक्टिंग करने से परेशान हो गया था कि आप सेट पे जाते थे, आप डायरेक्शन की एक्टिंग करते हैं। I had become a cheap imitation of what I was known for. That's why I was, thank God, I had this last hurrah with Zaki. जब हॉल में कहीं पर तालियां गूंज रही थी और वंस मोर की आवाजें उठ रही थी, तो हमने कहा भैया थैंक यू, गुड बाय। लोगों को लगा थक गया है, वापस आ जाएगा। But the page has turned. And I have no illusions that people like you and the innumerable people who are there have a vision, have a talent which will outshine and outdistance me. I am realistic enough to understand that, applaud that, support it. So, Bhatta, tell me a little bit about your process with directors. तो आप इतने सारे डायरेक्टर्स को अपने मेंटोर, तुम ही जवाब दे दो इसका प्रोसेस। अब इतने नए डायरेक्टर्स आपके पास आए हैं, आपने इतने सारे नए डायरेक्टर्स को मेंटोर किया है। अनुराग बासु, इसमें से इतने नोटेबल नाम आए हैं। अनुराग बासु है, ये हंसल मेहता है, ये कुणाल देशमुख है, मोहित सूरी है। तो यू हैव मेंटोर्ड सो मेनी यंग डायरेक्टर्स। देखिए, मैं यही कहता हूँ कि हम एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है विशेष फिल्म। मेरा भाई जो है अल्ट्रा राइट है, मैं अल्ट्रा लेफ्ट हूँ। वो सिर्फ आंकड़े देखता है, एनालिसिस समझता है, और उसकी वजह से शायद हम आज भी 47 ईयर्स, 21-20 साल की उम्र में जब प्रवेश किया था, 47 ईयर्स गुजारना, कुछ तो सही किया हो, कुछ तो किया हो। तो वो पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि वो भाई कहीं था जो पैसे जोड़ने का मतलब जानता था। हमारा एक दायरा होता है कि सर वी मेक फिल्म्स फॉर दी कंजम्पशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। हमारा एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पर ही हमारे कंज्यूमर्स को हम, जैसे आज बाहुबली, पोस्ट बाहुबली एरा, इतिहास में अगर वक्त डिफाइन किया जाए तो प्री बाहुबली एरा, पोस्ट बाहुबली एरा। पोस्ट बाहुबली एरा में बेगम जान जो हमारी है 100 सिनेमा हॉल में आज भी चल रही है। एंड द फिल्म एज ग्रिम एंड एज सीरियस एज दिस हैज recovered its cost, it won't lose money, and it will go on to make money. It's an extraordinary achievement. मगर ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि एक तालमेल है महेश भट्ट का और मुकेश भट्ट का कि वो इकोनॉमिक्स देखता है, मैं क्रिएटिव
जो एक आइडियोलॉजी को मैं सपोर्ट करता हूँ डायरेक्टर की। मगर फिल्म बनाता है हंसल मेहता, अगर आएगा हंसल मेहता बनाएगा, सीजीत मुखर्जी आएगा तो बनाएगा। उसकी आइडियोलॉजी को मैं अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस से बचाता हूँ। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि प्रेशर आते हैं तो आपके और मेरे प्रोडक्शन हाउस के बीच में जो तलवार जो आप पे आने से रोकी थी वो मैंने रोकी है, करेक्ट? दैट्स माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे एक बहुत बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं, उनका नाम नहीं लूँगा दोस्त है अपना, उन्होंने यही कहा मुझसे, यार तुम कैसे बना लेते हो नए डायरेक्टरों को लेकर? यार मैं देखता हूँ तो वो इससे तो होता ही नहीं काम। तो मैंने कहा देखो यार, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ इसलिए बना लेता हूँ, तुम डायरेक्टर अब भी हो इसलिए बना ही सकते हो। स्टॉप इंटरफियरिंग इन द वे टू डू थिंग्स। इफ यू हैव गिवन देम फ्रीडम टू डू इट, लेट देम डू इट। सो आई बिलीव इन गिविंग यू कंप्लीट फ्रीडम वंस वी एग्री टू दिस स्पेस, कि वो स्पेस है इस पर हम कहानी की बेसिक नैरेटिव स्पेस से एग्री कर जाए, उसकी कोर आइडियोलॉजी से हम सहमत हों, उसके इकोनॉमिक्स को हम बिल्कुल क्लियरली समझने के साथ इसकी इकोनॉमिक्स ये है, क्योंकि फिर वो बॉक्स ऑफिस पे 50 लाख कमा के देने के लिए कि आपको 2 करोड़ का बिजनेस करना पड़ता है अपना सिनेमा हॉल में। देन आई फील दैट द डायरेक्टर हैज टू बी द मैन हू कॉल्स द शॉट। और मैंने हमेशा ये किया है और मैं यही करता रहूँगा, क्योंकि मैंने अपने कंपनी में पोस्ट 1998 जब मेरे भाई ने कहा था ये तो अब क्या होगा, जब कंपनी बंद हो जाएगी, तुमने डायरेक्शन छोड़ दिया, तो मैंने कहा विल डिस्कवर यंग टैलेंट एंड विल मेक इट विद देम। और मैंने कहा जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यू मस्ट आप एड्रेस वन क्वेश्चन, कोर क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू फाइनली डिसाइड ऑन द कंटेंट? द आइडियोलॉजी इज द डायरेक्टर is the ultimate moral authority, the creative authority, and that will be our guiding principle. अभी डायरेक्टर अगर आपका पगला ही जाए बिल्कुल कुछ, अब we agree to make a film on cricket and he starts playing hockey, then you have to intervene and prevail upon him. कैसा कहते हैं क्रिकेट खेलने की बात है, हॉकी कहाँ से शुरू कर दी मैंने? तो ऐसा कभी हुआ नहीं। जब भी हुआ है कि there is an intervention and then somebody sees respect being given to a person, डायरेक्टर को भी वैसे ही फील कराना पड़ता है इस तरह एक्टर फील करता है। दे हैव टू फील सेफ, दे हैव टू फील प्रोटेक्टेड, एंड ओनली व्हेन दे फील दैट वे दे गिव देयर बेस्ट। नो आई मस्ट टेस्टिफाई टू दिस। भट्ट साहब का एक बहुत ही अनूठा तरीका है डायरेक्टर के साथ डील करना। मैं मतलब 12 फिल्म बनाने के बाद एक नए डायरेक्टर की तरह भट्ट साहब के पास गया था, एंड इट वाज द सेकंड इनिंग्स ऑफ माय लाइफ। एंड मैंने एक छोटा सा स्टिल भेजा था भट्ट साहब को। हम लोग रेकी पे गए थे, बहुत थक गए थे रेकी करके, एक छोटा सा स्टिल भेजा था और जो उन्होंने एक्साइटमेंट व्यक्त की थी उससे सारे लोग मोटिवेट हो गए थे, इतने ज़्यादा मोटिवेट हो गए थे और थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए थे। तो कुछ दिनों के बाद मैंने उनको कुछ और स्टिल्स भेज दिए और अच्छे क्या, मैंने वो स्टिल्स पहले जो लिए थे हमने मोबाइल से लिए थे, उसके बाद अच्छा सा एक 5D मंगाया और हमने मतलब बहुत सारे स्टिल्स लिए। लगा अब भट्ट साहब और इम्प्रेस हो जाएंगे, मैंने स्टिल्स भेज होता गया। भट्ट साहब ने मुझे डांट दिया कि ये इसमें मतलब बहुत नकली लग रहा है सब कुछ। और सो बस इतना ही कहा उन्होंने कि हंसल ये इसमें कुछ सच नहीं लग रहा है, इसमें सच नहीं है। एंड दैट प्रोसेस, आई मीन इट वाज जस्ट दैट, मुझे एक हल्का सा करेक्शन था कि भाई तुम समझ जाओ। बट हंसल, जब मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आपको अपनी ही सेंसिबिलिटी से जोड़ कर रखने का मेरा मकसद होता है, क्योंकि आप जब अपनी ही सेंसिबिलिटी से अलग होते हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक अच्छा क्रिटिक वही होता है जो आपको अपने ही रास्ते से जोड़े, जिस पे कभी आप चला करते थे। थोड़ी जमीन करने की कोई थोड़ी पहले बनाता है जमीन होने के लिए, वो रास्ता भटक जाता है, बड़ा मुश्किल काम है। तो आई थिंक द जॉब ऑफ अ मेंटर इज टू हेल्प द डायरेक्टर हू इज इन चार्ज कि वो अपनी सेंसिबिलिटीज की गहराइयों तक पहुँचे, उससे अलग ना हो। कि अगर आप बना रहे हैं एक फिल्म, जैसे आप अलीगढ़ बना रहे हैं और बाहुबली अगर आज की हिट हो जाती है, तो आप सडनली प्रोड्यूसर आके बोलेगा बाहुबली का एक्शन सीन डाल दो, तो ये थोड़ी चल सकता ना। हम कहेंगे भाई ये अलीगढ़ बना रहे हैं, आप बाहुबली बहुत कमाल की फिल्म, अगर अलीगढ़ ही बन रही है तो इसके दायरे में रह के बात होगी। तो ऐसे में भी आप उस प्रोटेक्ट किए। Thank you.
We have Sudhir Mishra, one of the finest filmmakers of the industry. Sudhir, I would like to you to pose some, because you have worked with Bhatt Sahab and you know the integrities of Bhatt Sahab. 2.5 घंटे का ऑलरेडी मास्टर क्लास कर चुके हैं मेरे साथ में। नहीं आप Sudhir, so that भट्ट साहब के बारे में मैं एक पहले कहानी सुनाता हूँ। मैं 83 में 82 में आया था, तो मैं you're not that tall that मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों आया था। कमर्शियल फिल्में बनानी नहीं थी, आपकी फेसिंग वही हो। हाँ, और भट्ट साहब की अर्थ रिलीज नहीं हो रही थी, तो उनको भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। भट्ट साहब ने अडॉप्ट किया मुझे थोड़ा और बहुत शराब पिलाई। तो जॉनी बख्शी हमारे दोस्त भट्ट साहब के दोस्त होते थे, उनका महबूब में ऑफिस होता था, उसके सामने बेंच हम लोग बैठते थे और अमित खन्ना इनका हमारा दोस्त था, हमारा बड़ा भाई था। वो शराब नहीं पीते थे लेकिन पैसे वो देते थे अक्सर, ऐसा होता था। तो भट्ट साहब और मैंने बहुत शराब पी है, वहाँ भट्ट साहब ने पिलाई, और फिर किसी दिन नहीं होते थे तो बोले अभी कुलभूषण ने फिल्म साइन की है तो वहाँ जाते हैं पीने, ऐसा करते रहते, ऐसा होता था। फिर भट्ट साहब, मैं कहीं गया और भट्ट साहब बहुत सक्सेसफुल हो गए, नाम बना रहे थे, तो मैंने भट्ट साहब से कहा कि यार मुझे असिस्टेंट ले लो, अब बहुत सक्सेसफुल हो गए, मेरे पास कोई काम ही नहीं है। इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया सुबह और बैंक ले गए। उनका सिग्नेचर ठीक नहीं होता, एक अलग कहानी है वो। बैंक में उन्होंने मुझे 5,000 रुपए का चेक दिया, बोले अगर तुम मुझे असिस्ट करोगे ना तो कभी एक डायरेक्टर नहीं बनोगे, क्योंकि मैं बहुत सक्सेसफुल होने वाला हूं और फिर तुम्हारी आदत पड़ जाएगी इसकी, इसलिए 5,000 रुपए लो, जाओ। वो 5,000 रुपए मैंने कभी वापस नहीं किए। दैट डेट आई ओ। बाकी सवाल तो आप लोग पूछे, ये मैं बताना चाह रहा। Bhatt, you have been master of relationships, whether it's Earth or all your films. Performances, Shabana, Smita Patil, those images are still in the minds of every filmmaker, every audience. A drama which you created on the screen. I would like you to, speak something on that. How do you manage to create that drama and convince the audience? Because there are filmmakers sitting here who would like definitely to know, how that happens and how that entire पूरा माहौल जो create होता है आपकी सारी फिल्मों में, चाहे वो अर्थ हो, चाहे whatever, all your films line up. अर्थ का जिक्र कर रहे हैं आप, तो अर्थ का ही एक किस्सा सुनाऊंगा मैं। एक सीक्वेंस है, I don't think the younger people have seen it, but if you see it, you remember it. You'll notice it after this master class. कि जहाँ पर वो बीवी फेस टू फेस आती है अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के साथ में, played by स्मिता पाटिल. कुलभूषण खरबंदा is the husband, स्मिता पाटिल is the girlfriend, and शबाना was playing the wife. गाना चलता है, उसके बाद में वो हस्बैंड अपने बीवी को देख के डर के मुंह फेर के निकल जाता है। एंड शबाना का जो कैरेक्टर था, वाइफ who is slightly high, she out of nervousness downs the drink, and she aggressively goes and confronts the husband, और उसको कन्फ्रंट करती है, और फिर वो बात करते करते वो बीवी के अंदर से कोई और ही व्यक्ति इरप्ट होती है, which is nothing close to the housewife. She becomes a street woman. She becomes like a tigress. और वो सीन जब हमने डिस्कस किया था, तो शबाना ने मुझसे कहा कि we will just do it in one take. मैंने कहा हाँ, we'll just do it in one take. We'll do it in one shot. और वो शॉट शुरू हुआ, and the scene started growing and growing and growing, and when it got over, we had touched something which was unbelievable. ये कभी हुआ नहीं था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि कहीं पर इससे पहले जो कॉन्वर्सेशंस हमारी होती थी आपस में, शबाना की, मेरी, स्मिता की, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के दायरे में वो फिल्म बनाई गई थी, तो मैंने कहा था कि there was a film reference which I was giving that
made by a very senior filmmaker, Yash Chopra Sahab, called Silsila, where songs were shot in tulip gardens in Holland. So I only said, look, extramarital affairs जो होते हैं वो इस तरह tulip gardens में नहीं होते हैं, ये कहीं पर अंधेरे में होते हैं, कहीं पर बंद कमरों में होते हैं, उसमें एक भय होता है और उसमें एक्सपोजर का एक फियर होता है, क्योंकि मैं जी चुका था उससे. I could explain that. How could I do it? कहीं पर the lines between the fictional world and the real world को blur करने का ही एक प्रोसेस होता है. फिल्म मेकर जो है वो अनरियल को जितना अपने परसुएशन से, अपनी इमेजिनेशन से वो डायरेक्टर अपना राइट एक्टर के अंदर वो एक एहसास क्रिएट करे, अपने आसपास के लाइट बॉयज को भी इन्वॉल्व करे, चिल्ला देगा शोर मत मचा, लाइट पे हाथ हटा. अनलेस ही डजंट क्रिएट्स अ स्पेस, तब तक वो माहौल बनता नहीं. So I feel that I succeeded in making my actors touch something which were themselves afraid to touch. और क्योंकि they trusted me, it's like when you go underwater. तो आप बोलते हैं कि मेरे हाथ में रस्सी है, तू जरा झटका मार देना, I will pull you up. So the actor feels safe, and once they feel safe, then they can do anything you want. But that safety is only possible if you A, respect them. You have to protect them. You have to tell them that no matter what happens, they will not be left naked and exposed. Once they get the feeling, they do it. सर, आपने जो एक्सपीरियंस के बात आपने किया, when you started working on your experience, as you said, when you start that project or movie in your experience, that's not so easy to portray someone as an act, someone in your experience. So there, how कितना आपको मुश्किल लगा कि किसी एक्टर को आपके एक्सपीरियंस के ऊपर जीना? So आपको उस वक्त लगा नहीं कि ये मेरा एक्सपीरियंस ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या आप खुद को वहाँ पे देखना चाहते थे कि मैं कर लूँ, या फिर कितना उस बैलेंस को आपने कैसे मेंटेन किया? देखिए, आपको लगता है जो आपका अनुभव है बड़ा यूनिक अनुभव है. अर्थ के बाद में एक रिस्पांस मुझे जो दुनिया से जहाँ भी जाता था, खासतौर पे औरतें आती थी, कि आपको मेरी ये सच्चाई कैसे पता है? वो बीवियाँ बोलती थी, वो गर्लफ्रेंड बोलती थी. तो मैंने कहा मैं तो अपनी सच्चाई जो है वो बयान कर रहा था. ह्यूमन बीइंग्स आर पैथेटिकली सिमिलर. हमको लगता है कि कुछ हम कमाल के अलग हैं. हम लोग थोड़ा सा सरफेस लेवल पे एक डिफरेंस होता है कॉस्मेटिक. अंदर जो है हम जो हैं वी आर वन. जब मैं दे से दैट्स व्हाई टू टॉक अबाउट द पर्सनल इज टू कनेक्ट विद द यूनिवर्सल. जब आप यूनिवर्सल बात करने के निकलते हैं तो वो बात ना पर्सनल होती है ना वो जनरल होती है, वो पिटती है फिल्म. मगर जब आप पर्सनल एहसास से कहीं पर हासिल करके कोई बात कहते हैं तो जो एक्टर है वो भी महसूस करता है कि ये बात तो मेरी कर रहा है, ऐसी कोई बात इसमें है नहीं कमाल की जो मेरे अंदर था वो. एंड दैट इवन द ऑडियंस फील्स दैट. अ ग्रेट पोएम इज अ पोएम दैट मेक्स द लिसनर अ पोएट फील लाइक अ पोएट. ऐसा नहीं कि वो आप बोलते कि हाँ ये कमाल का है, मैं तो सोच ही नहीं सकता है. नहीं, उसके अंदर वो एहसास होते हैं जिसको आप लफ्ज देते हैं. मगर एहसास जो है जब तक वो एक कॉमन फ्रीक्वेंसी को आप नहीं छुए तब तक वो आप यू कांट achieve that impact. But to come back to one thing which Ashok ji asked me, there's a word I used recently in the edit of Begum Jahan, which I think I must leave you with. I was telling the editor कि हर scene का एक emotional temperature होता है. So it's a very unusual word that I stumbled upon. An emotional temperature of a scene. जैसे आपका conversation चलता है, जैसे when I walked into this auditorium, there was an emotional temperature of this auditorium. अब क्योंकि हमारे बीच इतनी बातचीत हो गई तो एक इमोशनल टेम्परेचर कहीं पर चेंज हुआ है. जैसे उसका इमोशनल लेवल जो है कहीं पर वो राइज करता है. एंड आई थिंक एज क्राफ्टमैन, एज डायरेक्टर कोशिश क्या करता था, अरे यार सुबह जो शॉट किया था वो इमोशनल मर रहा है, लंच के बाद में कहीं पर एनर्जी डाउन हो जाती है और आपके वो
फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. सो द अटेम्प्ट इज टू कीप दैट इमोशनल टेम्परेचर हाई, एंड वो एक टीम एफर्ट होता है कि कहीं पर मैच के बैठ जाऊं तो आप उसको लेके भागे. सो आई थिंक द गेम इज टू टच द इमोशनल टेम्परेचर ऑफ द एक्टर, और उसको फीड करना पड़ता है. टू कीप ना कि जैसे आग होती है, वो जलती है, फिर उसको कम होती है तो उसको हवा देते हैं आप. So you use words to kind of keep it alive, and that's the job of a director. A good director is a person जिसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं है. When everything is right, you feel the absence of a director. That's what they say. God is there in his absence. It's not in his presence. Given like health you have. So the health of a person is brilliant when the liver is right, when the heart is right, when the eyes are right. When one of them is not functioning, that's when you can get the feeling of disease. So director so almost goes into the background when the actors are doing the job, the cameraman, and his job is to make everybody come to the optimum. That's the job of the director, and this is what I think I have achieved. Thank you so much. Yeah, next. Yeah, one second. Beta, we'll come up. We'll come up. Don't worry. ऊपर से, हाँ ऊपर से. You can pose a question from there without the mic. Doesn't matter. Yeah, please. Yeah, please. You look like Guru Dutt in Pyasa. जला दो ऐसे छूट जाती. Yeah, please. Okay, talking about writing about your own personal experiences, autobiographical writing in films. Sometimes there is this fear of indulging in something that has moved you in your personal life, and you fear that will this really move the other people as well? That is one fear that you keep having, like I keep having while writing. And the other thing is also the fear of being judged, because you're writing about people whom you are related to as well. And there's a third thing when that happens, is that in your personal life some incident has influenced you strongly or something, but in real life there are no endings really. So it's also a lot of times difficult to find an end to a personal story. Spare 3 points if you could help. You know, there was a line that Francois Truffaut, the great French director, had said, a filmmaker is a fairer God. What life doesn't give you, the filmmaker gives you an ending. He gives a sense of closure, which can be gratifying, which can nurse your wounds, give you hope. So that's the last part of the question you asked me. The fear of being judged, yes. The reason the world is full of more spectators and less performers, because it requires a lot of balls to be a performer. You risk being laughed at, belittled, humiliated, abused. और ये हर एक के अंदर वो होता नहीं है जज्बा to stand there and bear it all and risk it all. So the fear of being judged is something that you will have to transcend, and that is there with every film. और इसलिए जो prescribed narratives होते हैं, या prescribed जो story telling के अंदाज या थीम से जुड़ के रहने में जो एक herd feeling होती है ना, कि आज जानवर जो है जब असुरक्षित महसूस करता है तो दौड़ के जाके अपने वो एक टोली में शामिल हो जाता है ताकि अपनी पहचान इनविजिबल हो जाए. What does he do? He becomes invisible, because to stand out is to be visible, and when you stand out and you're visible, you are vulnerable to all kinds of attack. So इसलिए a thinker, a writer, a filmmaker, anybody who's really worth something is a person who has the guts to stand out and be attacked for whatever. Who told you people will lay down red carpets if you start saying your things? No. Things are going to be very difficult. Anybody who tells you it's going to be it's going to be a rose garden, is telling you a lie. It's going to be, the more unique you are, the more troubled your life is going to be. Because the status quo jo hai, it is imposed on you through all those power centers. Anybody who comes to subvert will have to face the opposition. So the fear of being judged is going to be there. अर्थ को लेकर क्लाइमैक्स को लेकर कितना 1 साल प्रॉब्लम हुई कि साहब नहीं, उसको तो चले जाना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ में. विनोद पांडे जी की फिल्म बनी थी, बहुत बड़ी हिट हुई थी एक बार फिर. तो जावेद साहब जैसे अपना बहुत ही वेल मीनिंग इतने बड़े फिल्मकार में आकर कहीं यार देखो कहीं पर क्लाइमैक्स में उसको
चले जाने दो उसके साथ में, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, क्योंकि ये जो है दिस एलिमेंट ऑफ होप। विजय आनंद साहब से उन्होंने कहा था इतनी अच्छी फिल्म बनाई है तूने, क्यों अपने 4 फ्लॉप है, बड़ी मुश्किल से अच्छी बनाई है, ये भी फ्लॉप हो जाएगी। तो कहीं पर रूह से आवाज आई कि नहीं साहब, ये पिक्चर अगर चलती है तो यही क्लाइमैक्स पर चलेगी, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। 1 साल हम लगे रहे जरूरत की, एंड फाइनली द पिक्चर टुडे इज अर्थ बिकॉज ऑफ दैट क्लाइमैक्स। तो वो डर को कैसे नेगोशिएट करना है, वो जिल्लत को, 1 साल की जिल्लत को कैसे फेस करना है, वो डिफिकल्ट काम है, इट वोंट बी इजी। तो दैट इज वेयर योर मेटल कम्स टू द फोरफ्रंट। एंड बाकी रही बात, आपने पहला सवाल क्या भूल के इतना लंबा जवाब दे दिया मैंने। पहला सवाल क्या था? Also something like that कि आप बहुत मूव होते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, लेकिन ये लगता है कि will it be equally moving for others? So there is, like you were earlier talking about mixing, drawing the line between fiction and realism. I think that's where it. There's always a danger. ये जो आप कह रहे हैं कि yes, there's a danger of getting self-indulgent. I think one of the reasons why art perhaps worked, and it's an enduring film, or enduring classic as people say, is because it did not look at the issue from the point of view of the man. I dared to look at the problem from the perspective of the wife. Otherwise, autobiographical material को आप अपने नजरिए से देखते हैं, अपने perspective से देखते हैं. And what you called actually personal is actually universal. And I said, if there are genuinely tears in you, not that you're trying to use tears as a means to get applause and get accolades, then the scene will evoke the same emotion. No tears inside, no tears outside. That's what the law is. You have to have tears inside you first. कैफी साहब ने वो जो जुमला, वो जो लाइन लिखी थी कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। He plucked it out from the experience of his own life. He says कि मैंने जब सिचुएशन सुनाया उनको, तो अपना समझाया, तो उन्होंने कहा कि यार एक बुखड़ा आया है, तो क्या? इससे मैं कैंसर हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था टाटा के, तो मेरा एक दोस्त था जो गया था अपने डायग्नोसिस के लिए, तो वो चल के आया, बड़े मुस्कुराते हुए आया। तो मैंने उससे कहा, क्या भाई तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या छुपा रहे हो तुम? एंड ही सेड, आई गॉट कैंसर. So from that living experience of his, he pulled out that बुखरा कि तुम इतना जो है, तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गाने? नमस्कार भट्ट, मेरा नाम पल्लवी है, पेशे से लेखिका हूँ। आपसे एक सवाल है, जैसे आपने कहीं मेंशन किया था कि पेन शुड टच यू फॉर यू आउटपुट योर क्रिएटिविटी, तो अपने बारे में दर्द से मेरा तारुफ हुआ था और उस वजह से भी मेरा कला की तरफ झुकाव बढ़ा। मेरे साथ ये है कि मैं लिख सकती हूँ, दर्द को लोग पसंद करते हैं, तारीफ़ करते हैं, पर अब मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ मुझे लगता है दर्द होना चाहिए ताकि मेरे अंदर से रचना निकलती रहे। तो क्या ये ज़रूरी है कि आप वापस बीते पास में जाकर उस दर्द को महसूस करें और उसे रचना में उभारें, या फिर आप एक नए दर्द की तलाश करें जिनसे आपकी रचनात्मकता बनी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि यू हैव टू बिकम अ मैसोकिस्ट टू बी अ फिल्ममेकर, कि आप बार बार अपने आप को तकलीफ दें, एक ऐसे रिश्ते से जोड़ें जहाँ पर आप जलील हों, आपका दिल टूटे, और फिर से आप कहानी हासिल करके संदीप जी के पास जाएँ, कहे कि संदीप जी लीजिए, मैं कमाल की कहानी लाया, थोड़ा पैसे दीजिए और हम आपको और रिलीज कर देंगे। ऐसा है नहीं, यू कांट प्लान इट। पेन इज कांट बी अ रेसिपी, कि वो कोई रूज नहीं है कि आप लगा के देख लेंगे साहब ये दर्द है हमारे पास। I've seen a lot of people who pretend to be pain sellers. It doesn't work. उसमें एक बच्चों जैसी एक मासूमियत होती है कि जहाँ पर आप, हाँ जो आप फैशन, देखिए एक मिसाल मैं देता हूँ बहुत सिंपल, बोलते हैं कि when the grain of sand gets into the crop in oyster, it creates great pain for that oyster. The oyster wants to escape from the pain, so it turns it into a pearl. Its intention is not to make a pearl. वो सिर्फ दर्द से मुक्त होना चाहता है। पर्ल का प्राइस टैग तो संदीप जी लगाते हैं, बाजार लगाता है। ऑयस्टर जो है, here the artist is what he tries to get rid of a pain, something that has bothered him. एक जिंदगी का एक अनुभव होता है जिससे गुजरते हैं कि एक एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर था, एक अफेयर किया, वो लड़की जो सामने आंखों के सामने तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, और
उससे अर्थ बनी। मगर वही फिल्म मेकर जब वो लम्हे बनाता है टू यूज दैट पेन, इट इज ओपनिंग अ शॉप, तो वो नहीं चलती उतना जितना अर्थ चलती, क्योंकि वो मासूमियत चली जाती। सो आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ द सेम नैरेटिव मेड विद एन इंटेंशन ऑफ अ फिल्म मेकर. When he used it first, it was simple, it was like exhaling. But then he was visiting the same problem through that perspective. अब दर्द को कैसे मैं दोबारा पैकेज कर उसको मैं बेचूं? The intention was flawed. वो नीयत कहीं पर खराब हुई थी, तो वो नीयत पे ही डिपेंड करता है. मैं तो सर आपको एक्चुअली गुरु मानते हैं, इसलिए आपसे एक सजेशन चाहते हैं कि पहले सर हम लोग डायरेक्टर साहब से कहीं कहीं मिलने का मौका मिलता था, लेकिन डायरेक्टर साहब से किसी डायरेक्टर साहब के पास जाते थे, मिलने का मौका मिलता था. लेकिन अभी जो कास्टिंग जो करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, उन्हीं के पास सब कुछ है, तो कई बार हम जाके फ्रस्ट्रेट हो जाते, वो लोग खुद ही एक्ट कर लेते कोई. तो इस समय हम क्या करें सर? हमारे यहाँ तो ऐसी प्रथा है नहीं. हमारे यहाँ अब भी जैसे अनुपम खेल आया था सालों पहले, ऐसे लोग आ जाते हैं. तो हमारे यहाँ एक कास्टिंग एजेंसी से काम आसान हुआ है, और हमको भी मदद चाहिए होती है भैया, क्योंकि हमारी रीच वहाँ है नहीं इतनी जहाँ पर एक ऑर्गेनाइज लेवल पर ये कास्टिंग जो है डायरेक्टर हमारे टैलेंट को एक्सेस कर सकते हैं. और हमारी उनकी सोच कहीं पर, उनकी रीच जो है हिंदुस्तान के मुंबई के फ्रेम से आगे है. तो हम तो वी आर फिशिंग इन द सेम बॉटम, हमारे वही लोग होते हैं. तो ये एक बदलते दौर का एक तकाजा है भाई, जिसमें आपको जो वक्त का जो तकाजा है उसको आपको मानकर उसको नेगोशिएट करना पड़ेगा. मगर आज भी ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिसको आप मिल सकते हैं, एंड इफ देयर इज समथिंग इन दैट स्ट्राइक्स द डायरेक्टर एट दैट मोमेंट ही विल टेक यू. आई वांट टू नो, जैसे आपने भी बताया कि हमारा जो सिनेमा जो भी आप बनाते हैं इनहेलिंग लाइफ एंड एक्सेलिंग सिनेमा, राइट? तो ये मैंने हर फिल्म में ऐसा नहीं किया, खड़क में नहीं किया था. तो देखिए, ये द डेंजर ऑफ मास्टर क्लास इज दिस, that you pick up a phrase and you think that's the general rule. No, I'm saying that, yes, of course, in any case, whatever, even if you make a so-called fictional film, you are actually inhaling life and exhaling cinema. मगर जिसको आप autobiographical cinema बोलता है, वो जो है is applicable to certain films. हाँ जी, sorry. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को और फिर हम दिखाते हैं. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ आइडिया आ जाता है अपने अंदर, जैसे सोते टाइम कुछ ऐसे आइडिया आया कि मैं ये बनाऊंगा, फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कुछ देखते हैं और उससे हमें इंस्पायर हो जाते हैं. तो जब अपने अंदर कोई आइडिया आता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर जो हम ऑब्जर्व करके बनाते हैं उसमें हम क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों में? सारी उम्र जो चक्कर चलता ही रहेगा, पूछते रहो सवाल, और कुछ समझ में आ जाए तो मुझे समझा देना. We have a musician and a singer amongst us who has worked a lot with Bhatt साहब. कौन है? तौसीफ अख्तर. अरे काफी काम किया. तौसीफ music related. Bhatt साहब has been master on music as far as films are concerned. All his songs have been super hit. And Tawsif has played a very important role in most of the songs with Nadeem Shaman, whatever songs Bhatt साहब has given. Tawsif, would you like to ask something? आदा हुजूर, एक छोटा सा मैं किस्सा आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, और क्योंकि भट्ट साहब इज़ वेरी फेमस फॉर हिज सिलेक्शन ऑफ म्यूजिक. हाँ, फेसिंग वहाँ करें ऑडियंस से, आप बात करो. तो मुझे याद है कि हमने पहली फिल्म रिकॉर्ड की थी भट्ट साहब के साथ में, कसूर. और उसके बाद हम एक फिल्म कर रहे थे राज 1, और उसका एक गाना था आपके प्यार में हम सवरने लगे. तो उसका एक बड़ा खूबसूरत किस्सा मुझे याद आ रहा है कि नदीम भाई का मुझे फोन आया, उन्होंने नींद में से मुझे उठाया. उन्होंने कहा कि मैंने ये एक मुखड़ा भट्ट साहब को सुनाया. मंजर याद आ गया, रिकॉर्डिंग रूम में पहुंच गया मैं आपके साथ. हाँ जी, फोन आया था. हाँ, तो भट्ट साहब को मुखड़ा ये मैंने सुना दिया, तुम ये मुखड़ा याद कर लो और इसके अरेंजमेंट के लिए तुम शबन भाई के यहाँ पहुंच जाओ. तो मैंने वो जैसे तैसे मुखड़ा याद कर लिया उसको, और उसकी जो हम क्रॉस लाइन होती है उसमें बड़े खूबसूरत सी एक जगह थी. तो जितनी जल्दी मैं याद कर पाया, मैं करके पहुंचा सिटिंग रूम पर. तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी कि आज पहली बार जो है मैं सिटिंग करूंगा भट्ट साहब के साथ में.
नॉर्मली सिटिंग नदीम भाई डायरेक्टली फ़ोन पे कर लेते थे। बहरहाल भट्ट साहब तशरीफ लाए और कहा ठीक है मियाँ गाना सुनाओ, तो गाया मैंने। और जैसे मैं क्रॉस लाइन पे पहुंचा, इन्होंने मुझे रोक दिया, एक मिनट, वो जगह ठीक नहीं गा रहे हो तुम। तो मैंने कहा भट्ट साहब वो इस कदर आपसे जो मोहब्बत हुई, बाजू में बिखरने लगे। तो ये सीक्रेट है कि भट्ट साहब का म्यूजिक हिट क्यों होता है। देखिए वो जगह आज भी आपने करेक्ट गाई। तुम जगह ले जाओगे तो याद कैसे नहीं आएगी। So sir, it has been a great pleasure। 3-4 प्रोजेक्ट्स में मैंने असिस्ट किया नदीम भाई को। आपकी जो फिल्म है तो देखिए आपने सवाल पूछा है तो उसका पूरा निचोड़ क्या है। तो वो मुझे ऐसे कुछ संगीत के बारे में कुछ ज्ञान ऐसा ज़्यादा है नहीं कुछ। जिस तरह अभी आप कह रहे थे तो मुझे वो एक जहन में वो याद जो है गूंजती है। तो वो जो सिचुएशन था वो उस ट्यून का ही तकाजा था कि उसको आप किस तरह गाएं। उसकी ही स्ट्रेंथ थी। उसकी गहराइयों में आप उतर नहीं रहे थे उस वक्त। आप गा सुनाइए जरा, गाइए। आपके प्यार में हम संवरने लगे, हाँ फिर इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, टूट कर बाजुओं में संवरने लगे, बिखरने लगे। हाँ करेक्ट। तो ये अंदाज जो है वो गाने के बिगनिंग में था, मतलब उसको आपने शायद पूरी तरह फॉलो ही नहीं किया। सर उस दिन मैं पहली बार आपके सामने पेश हुआ था, वैसी सांसें रुकी हुई थी मेरी। मगर उसमें एक क्विकली एक और चीज मैं, जो कि सब एस्पायरिंग फोर्थ-कमिंग डायरेक्टर्स भी हैं, व्हाट द पॉइंट इज ट्राइंग टू मेक कि अगर हंसल आता है कहानी को लेकर या एक सीन को लेकर, तो मेरी कोशिश यही होती। मेंटरिंग क्या होता है? मेंटरिंग यही होती कि आपको मैं आपकी ही स्ट्रेंथ से वाकिफ कराऊं कि तुम समझती हो कि तुम्हारा ही गाना है, ये तुम्हारी ही बात है। उसकी गहराइयों में ये है जो मुझे समझ में आ रहा है। तुम खामखाम जल्दबाजी कर रहे हो और कुछ मैंने कुछ जोड़ा नहीं ऊपर से, उसकी गहराइयों से ही निकाला एक्चुअली। इवन भट्ट साहब जिस तरह से लिरिसिस्ट को ब्रीफ करते हैं, जैसे इसमें आप वो गाना था जो ज़्यादा प्रमोट नहीं हुआ, सोने दो ख्वाब बोने दो, तो वो आपने जिस तरह से उसको ब्रीफ किया था वो गाना बन गया। मैं मतलब अक्सर सोचता था कि क्या बताएं यार, भट्ट साहब ने मतलब मुकेश जी ने बताया इसमें गाना चाहिए और शहर के बारे में कोई गाना चाहिए, तो मतलब वही घिसा पिटा एक थॉट आ रहा था। राइटर भी कुछ घिसा पिटा लिख रहा था और भट्ट साहब ने पता नहीं क्या नींद के बारे में कह दिया कि नींद ही नहीं आती यार, नींद नहीं आती। This element of Bhatt Sahab of yours, we talk about Gurudat ji, we talk about Raj Kapoor Sahab, who have Vijayanand Sahab. Music has been on the top. All their songs have been hit. Actually, the music. So, Bhatt Sahab, आपने जो that's why this music area was very important. Subtext of the film, जो आपके इमोशनल कोशंट जो होता है आपकी फिल्म का, वो म्यूजिक से उसका, जिससे हम लोग मानते थे कि इस फिल्म का म्यूजिक चल जाता, एक जमाने में था वो तो नॉट द रूल डजंट अप्लाई नाउ, वो पिक्चर हिट हो जाती है। क्या होता है, द फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑडियंस एंड द फिल्म मेकर इज थ्रू द म्यूजिक। तो उस म्यूजिक से अंदाजा लगता है कि साहब इस फिल्म में अगर ऐसे गाने हैं तो कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे, तो कुछ ऐसी गहराइयों से बात कही जाएगी। तो वो हमारे हाल में ये कहता है कि इसकी द फिल्म्स में भी बैड द सॉन्ग्स आर गुड, करेक्ट। वो कहीं पर गाना जो है इमोशनल सबटेक्स्ट जो है उसको कहीं पर स्पॉटलाइट करता था। दैट इज व्हाई मैं गुरु राजकोसला से कि भैया कि गाने के जरिए अगर आप अपनी मेन सिचुएशन को आप स्पॉटलाइट करें तो वो फायदेमंद है, उसकी रीच कहानी की या उस फिल्म की ज़्यादा फैल जाती है। हम फिल्म तो बना लेते हैं, फिल्म बनाने के बाद जब हम डिस्ट्रीब्यूटर या एग्जीबिटर के पास जाते हैं, तो अभी एग्जीबिटर काफ़ी हद तक चले गए, कॉर्पोरेट सेक्टर पे बात आ गई है। कॉर्पोरेट सेक्टर वाले किसी भी फिल्म अगर स्टार कास्ट बड़ा है तो बड़ा इजी रिलीज के लिए तैयार हो जाते हैं, फंडिंग हो जाता है। बट अगर कोई डायरेक्टर कोई अच्छी चीज़ बनाना चाहता है और बना भी लेता है तो उसको रिलीज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको अच्छे से पता होगा। बिकॉज एक छल जी की मैं हंसल जी की फिल्म देखा छल, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेस करना पड़ता है।
तो इसके लिए क्या सर कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर सपोज रिलीज भी हो गया तो बहुत सारी चोरियां होती है वहाँ पे, तो इसके लिए कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि जब नए डायरेक्टर जो बना लिए हैं, बनाने तक बात आ गई है, कंप्लीट हो गई है, तो उसको कुछ हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें? देखिए साहब, ये टेरेन जो है ये दिन पे दिन और बिविल्डरिंग जिसको कहते हैं, कि समझ आ ही नहीं रहा है, किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि अगले मोड़ पे क्या होने वाला है। जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं इसके ज़रिए हमारी फिल्म में दिखाई जा रही हैं, इससे दर्शक जुड़ रहे हैं, वो आज की तारीख में इतने अनयूजुअल हो गए। इस तरह स्मार्टफोन पे लोग फिल्म देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जिसको आप डिमोनाइज करने के साथ ये डिस्ट्रीब्यूटर है, यही जो है मेरे रास्ते का पत्थर है, यही मुझे अपने ग्रेटनेस से वंचित रख रहा है या जोड़ नहीं रहा है। एग्जीबिटर कहता है कि भैया किसी तरह क्राउड को ले आओ, फ्राइडे को जब शो हो सिनेमा हॉल खाली ना हो। अब उनके अपने मापदंड हैं बेचारों के, क्योंकि उनकी ईंट पत्थर की इन्वेस्टमेंट है, और वो आपको स्क्रीन्स अभी देते हैं जब उनको लगता है कि हाँ आवाम आएगी देखने। अगर आपका कंटेंट कितना भी कमा, इसलिए हमने अक्सर देखा है यहाँ पर कि आप लोग ने देखा है कि बहुत सारी फिल्में होती हैं जो देश विदेश में बहुत रिकग्निशन पाती हैं और उनको सराहा जाता है, मगर यहाँ पर हमारे जो सिनेमा हॉल में वो ऑडियंस को ड्रॉ नहीं कर पाती। तो क्या करे एग्जीबिटर? तो एग्जीबिटर बोलता है कि साहब हमको पता नहीं, आप क्राउड ले आइए, हमको यहाँ पर ये बिजली के जो बिल हैं और ये जो रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी रिकवर करना है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्योंकि बदल वक्त कहीं कहीं पर करवट ली है और यहीं पर द कंटेंट इज बीइंग कंज्यूम ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। एक डिजिटल एज के बाद में पूरा लैंडस्केप बदल गया है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अराइव एट सम सिंगल फॉर्मूला कि मैं कहूँ कि सब ये है फॉर्मूला, मुझे खुद पता नहीं। हम रोज सुबह मिलते हैं और एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि पता नहीं कल क्या होने वाला है। The fact is, I don't have the burden of knowing the answers. I don't know the answers. I take each day at a time. पता नहीं, इस तरह बोलते हैं ना कि वो how does a dog cross a street at peak traffic hour? He just crosses it. Having crossed it, he doesn't stand on the platform and give lecture. हम उस stray dog की तरह है, किसी तरह हमने जो है रास्ते को क्रॉस किया और वहां जाके आप बोलते हैं प्रवचन तो भैया हमने वो ट्रैफिक अलग है, वो आई डोंट नो। हाँ, उसमें कोई जवाब नहीं है, जवाब नहीं, बस आप फिल्म बनाते रहो, आपका जो काम है वो आप ईमानदारी से अच्छे से करते हैं। अगर कोई आपके पास कमाल का सब्जेक्ट लेकर आता है, समथिंग दैट टचेस योर हार्ट, so is there a possibility for Mahesh Bhatt, the director, to make a comeback? No, that is finished. This has been a question that has been haunting me for the last 19 years now after I given a direction. That's like, I will never drink again. I should drink once upon a time a bottle of whiskey with a Sudhir. So were you drinking when you made Earth? No. Yeah, I was drinking, but not so much as my drinking started post success. Nothing failed by success. आज के टाइम में तो पैसे ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से क्वार्टर रम की पिए पड़ते। मेरा सवाल इन सबसे उल्टा है सर। मेरी ज़िंदगी बहुत मंडेन है। जो आपकी ज़िंदगी है वो साइन थीटा का ग्राफ है और मेरी ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन है। मेरी ज़िंदगी में खुशी है कि आज मैं महेश भट्ट के साथ इफ्तिदा क्लास में आई हूँ। दुख है कि फ्रिज से अंडे निकालते हुए 2 अंडे आपस में टकरा के टूट जाते हैं, और शौक था जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो सर मेरे पास वो विनिंग फॉर्मूला नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी को इंट्रोस्पेक्ट करूँ और कुछ ऐसा चीज़ निकालूँ जिस पर मैं एक ब्लॉकबस्टर बना सकूँ। और जब राइटिंग सीखी तो जैसे आपने कहा वो 3 एक्ट की बाउंड्रीज हमेशा आ जाती हैं, और जो भी आइडिया होता है हमेशा आगे से कमेंट ही आता था, आइडिया इज ब्रिलियंट बट हाउ कैन यू स्ट्रेच इट विद 3 hours? हाउ विल यू होल्ड द पीपल? हाउ विल यू होल्ड द क्राउड? सो फ्रॉम अ फीचर फिल्म राइटर आई वाज ऑलवेज एंडिंग अप एज अ शॉर्ट फिल्म राइटर. So sir, what should I do? That's my question, sir. If you have the fire in your belly, you will do it. You won't ask questions like this. एक मर्तबा आपके अंदर प्यास जग जाए पूरी तरह, आप पानी ढूंढ ही लेंगे। तो प्यास जगाने की पड़ेगी। हमारे अंदर प्यास, हमारे पास कुछ अक्सर ज्यादा नहीं थी, एक प्यास,
वो प्यास आज भी इतना कुछ करने के बाद में लगता है कि कुछ किया ही नहीं। लगता है कि ले देकर मैं देखता हूँ, मैं अपने भाई से कह रहा था कि यार हमने 70 फिल्में बनाई हैं, 70 फिल्में 2 घंटे का एवरेज पकड़ो, 140 आवर्स। व्हाट इज 140 आवर्स? यू लुक, वी आर लाइक, एज आई सेड, fireflies blinking in the night, thinking that we are outstanding thing. तो प्यास अगर आप में जग जाए तो आप ये सवाल नहीं पूछेंगे और कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा, आप मानिए। हम खुद ही कहा गया, हमें जब पिछले फिल्म थी, कितने लोग आए थे जिन्होंने कहा था कि भैया अपने बेटे को बोलो ये फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल काम है, जाके कोई असिस्टेंट को स्टडी कर ले। ये होता नहीं है, वेल मीनिंग लोग, ऐसा नहीं कि दे डिड नॉट मीन इट, मतलब मेरी प्यास की शिद्दत को कैसे वो जानते हुए। एक शेर कमाल का इस पे है, एक बहुत अच्छा शायर था सुखबीर सिंह शाद, उसने लखनऊ में एक बड़ी महफिल में इसी तरह मुझे कहा कि आपके लिए एक शेर है साहब, आपको मैं गिफ्ट करता हूँ। मैंने कहा अच्छा हाँ जी। शेर था कि हम अपनी दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, जरा सी बात पे आंखों को नम नहीं करते, बने बनाए रास्तों पे चलते नहीं हम, तमाम लोग जो करते हैं वो हम नहीं करते। बस ये खेल जो है मेरी बच्ची, ये खेल जो है एप्टीट्यूड का नहीं एटीट्यूड का है। क्या बात, स्किल का नहीं है, बहुत जुर्रत होनी चाहिए। एक बात साहब, परवाज हौसला होना चाहिए उड़ने का, और यही है शांताराम। ये आप जरा, जब मैंने, मेरा सौभाग्य था कि मैंने एपिक के लिए वो ख्वाबों का सफर किया, तो मैंने अपने अतीत में जाके हमारे जो क्रिएट मेकर्स थे जिनके बल पे आज हम खड़े हैं यहाँ पर, लालटेन, उनके पिताजी लालटेन अपना भाड़े पे देते थे जहाँ पर थिएटर था, उनके बेटे थे, वहां से आके राजकमल कला मंदिर बना देना कोई ऑर्डिनरी अचीवमेंट है। महबूब खान, वी शांताराम, ग्रेट पीपल, प्यास की उनके अंदर प्यास, संजय गिरते पड़ते उन्होंने ऐसे दौर में जहाँ पर कुछ सपोर्ट नहीं था। आज तो ऑर्गेनाइज है, टुडे द टिप ऑफ द फिंगर वी हैव इंफॉर्मेशन, शायद दैट्स द प्रॉब्लम ऑल्सो। कहीं पर वो जो स्ट्रगल थी कि एक किताब लेने के लिए हम यूएस जाते थे और फिर वो किताब जो है उसके लिए वेट करते थे और फिर उसका सम्मान करते थे। देखिए आज की तारीख में ऑल द विजडम दैट इज देयर इज अवेलेबल टू यू ऑन द इंटरनेट, मगर मैं आपके अंदर वो प्यास कैसे क्रिएट करूं टू फाइंड दैट इंटरनेट। व्हाट इज द स्कैरसिटी? स्कैरसिटी इज टू learn, and if you learn and you intensify that thirst, you will be that's a filmmaker. A filmmaker is nothing but a thirsty individual who never gets fulfilled. I'm an unfulfilled man, and that unfulfillment is my Anyway, we are very thankful to all of you, and let us give a standing ovation to Bhatt sahab and to Hansal for a brilliant masterclass. Two things I'd like to tell you before we see you off. Ashwini, please come. My another EC member, Saurav Verma, Balli, anybody else who's there on the in the auditorium? These are all my EC members who have been working day in and day out. Atul, Ashwini, Jagdish Sharma, Rajkumar Pandey. A big hand to all my Rega India. We all are together, we work together, we have Rahul Ravel Sahab also in But Sahab, we are really thankful for your time and for your valuable time to all of us. And we, on the demand of the people, we are taking a commitment from you for another part 2 masterclass with you at IFTDA. Committed. Nobody, the request to all of you, nobody will come backstage because Bhatt sahab and Hansal has to leave. And thank you very much for this great masterclass, Hansal. हाँ, एक बात मुझे लगता है शिव जी की जहन से निकल गई। On behalf of IFTDA and everybody here, हंसल भाई का आज बर्थडे है। हमने एक्चुअली चुनाव ये दिन इसलिए था क्योंकि हंसल मेहता का बर्थडे था। On all behalf of all of you, happy birthday to you.
Happy birthday, dear Hansal. Happy birthday to you. What does not happen when a director is celebrating his birthday amongst their own fraternity and Bhatt Saab's presence?